بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج ایک بہت اہم اور خوبصورت گفتگو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آج بڑی خوش قسمتی ہے کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے خون کے وارث جو ہیں وہ آج یہاں سارے اکٹھے ہوئے ہیں. میری بڑی خوش نصیبی اور بڑے دنوں کے بعد یہ موقع ملا کہ آج میں اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھا ہوں گپ شپ لگانے کے لیے. ان کے ساتھ ہم کچھ کوشش کریں گے کہ اس ایج سے نکل کے ہم اس ایج میں جائیں جہاں پر سرکار واصف صاحب کے ساتھ ہمارا وقت گزرا. اور یہ وہ باتیں ہیں جو کوئی مفکر نہیں آپ کو بتائے گا, کوئی آپ کو اسکالر نہیں بتا سکے گا. یہ باتیں ہیں جو خود ان کی اپنی آبزرویشن ہیں, جو ان کے ساتھ جو واقعات گزرے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ شاید یہ مجھے بھی نہیں پتا کہ آج کیا باتیں ہونے والی ہیں. تو یہ ایک ابھی تو راز ہی ہے, تو انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ اس راز سے ہم آہستہ آہستہ پردہ بھی اٹھاتے جائیں. تو میں سب سے پہلے تعارف تھوڑا سا کروا دوں. یہ مجھ سے چھوٹی بہن ہے سعدیہ واصف. یہ میرا چھوٹا بھائی بھی ہے جی. اور وہ ہے میری سے چھوٹی بہن نادیہ واصف. اور یہ قدسیہ واصف ہیں جی. یہ سڈنی میں ہوتی ہیں, ہم پاکستان میں ہوتے ہیں. یہ باہر کے ہوتے ہیں, ہم اندر کے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ آج بڑی دیر کے بعد اکٹھے ہوئے اور بڑی قیمتی باتیں. مجھے سرکار واصف صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا. فرماتے تھے کہ تمہاری یاد میں کلمیں لگائی ہیں گلابوں کی, تمہاری یاد میں کلمیں لگائی ہیں گلابوں کی, تمہاری یاد میں ہم نے لگایا سرو کا بوٹا. تو کچھ کلمیں, کچھ گلاب, کچھ یادیں, کچھ باتیں. شروع کرتے ہیں میرا خیال ہے آج کی اس گفتگو کو. چونکہ یہ میری بہنیں زیادہ تر کیمراز پہ نہیں آتی ہیں, تھوڑی تھوڑی شائع بھی ہیں, لیکن ہم کوشش کریں گے ایک فرینڈلی ماحول کے اندر بیٹھ کے بات کریں تاکہ یہ بھی کمفرٹیبلی بات کر سکیں. تو گفتگو کا آغاز میرا خیال ہے میں سب سے چھوٹی بہن سے شروع کروں گا, قدسیہ واصف سے. تو پھر آہستہ آہستہ ہم انہیں بھی بیچ میں انوالو کریں گے جی. قدسیہ واصف کو پہلے آپ سن چکے ہیں, ایک پوڈ کاسٹ میری اس کے ساتھ پہلے ہو چکی بھی ہے اور دیگر پروگرامز میں بھی یہ پہلے آ چکی ہیں. تو ہم شروع کرتے ہیں. قدسیہ چلتے ہیں پرانے دور کی طرف, پرانے زمانوں کی طرف, عافیت کے زمانوں کی طرف. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہم لوگ شاید نا اس دور سے نکلے ہی نہیں ہیں. ہم ہر وقت اسی دور میں رہتے ہیں. کوئی نہ کوئی بات, کوئی نہ کوئی ذکر, کوئی نہ کوئی واقعہ ہماری ڈیلی لائف کے اندر ایسا ہوتا ہے جس کو ہم ریزونیٹ کرتے ہیں اپنے پرانے وقتوں کے ساتھ. کی اس کے اوپر کیا اس وقت ہوتا رہا ہے, کیا بات ہوتی رہی ہے, بڑی قیمتی باتیں ہوتی رہی ہیں. اور ہم لوگ سارے ایسے تھے کہ بس ہم لوگ جو ہے نا وہ قریب قریب رہے ہیں سرکار کے. کوئی دباتا رہے, کوئی چائے پلاتا رہے, کوئی آپ کے کندھوں پہ بیٹھتا رہے, کوئی کچھ کرتا رہے. تو سنتے ہیں آج قدسیہ سے بھی. قدسیہ شروع کرتے ہیں, بسم اللہ کرو. کوئی بات سرکار واصف صاحب کی جو سب سے پہلے تمہارے ذہن میں ایز اے فادر فگر یا کوئی شفقت کا پہلو کوئی بتاؤ ذرا آج شروع سے. ہاں جی بھاجن, ایک پہلو تو نہیں ہے, بہت سارے ہی ہیں. ابو کے ساتھ تو جیسے اتنا اچھا ہمارا محبت شفقت کا ٹائم گزرا. ہاں ادب کا رشتہ بہت زیادہ تھا ہمارا. ابو کے ساتھ وہ جو ادب تھا وہ بڑے ہمیشہ ہی قائم رہا کہ ابو نے آنا تو ہم نے ایک سے بڑا ریزرو سا ہو جانا کہ ابو آ گئے, ابو آ گئے. پہلے ہم طرح بھاگ رہے دوڑے ہوتے تھے, ہر طرح سے کچھ بھی کرے ہوتے تھے. ابو کے آتے گھر میں ایک طرح سے سناٹا پیسفل ماحول ہو جاتا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابو کے ساتھ جو محبت, جو شفقت ہوتی تھی کہ ابو کے کپڑے ہم نے, مجھے اچھی طرح یاد ہے ابو کے ساتھ جب ابو نے تیار ہونا محفل کے لیے یا کہیں بھی جانے کے لیے تیار ہونا, تو ابو نے کپڑے شپڑے پہن کے وہاں بیٹھ جانا. تو ابو کا شیو کا ڈبہ رکھنا ہم نے, برش, اور ساتھ میں پھر ابو نے کہنا برش سے کیا کرتے تھے. پھر ابو نے کہنا ادھر سے یہ ذرا ٹھیک کر دو, ادھر سے یہ کنگھی کر دو. پھر ہم نے ابو کے ایسے چھوٹی سی کنگھی رکھی تھی, کنگھی کر دینی. ابو کو جرابیں پہنانی, ابو کو جوتے. یہ نہیں کہ وہ نہیں کر سکتے تھے, انہیں جو ہمارا لمس تھا وہ بڑا ہی
अच्छा लगता था कि मेरी औलाद है, मेरे इर्द गिर्द फिर रही है और मेरे छोटे छोटे काम कर। फिर अब्बू का बिस्तर तैयार करना, अब्बू के जैसे वहाँ पे पानी रखना रात को, बाकायदा एक एहतमाम होता था अब्बू के लिए जी कि अब्बू ने आना। अब्बू को पसंद नहीं था कि उनके बिस्तर पे कोई सोए? नहीं, उनकी गैर मौजूदगी में? बिल्कुल मौजूदगी गैर मौजूदगी में दोनों में हम अलाउड नहीं थे। वो कहाँ एक बड़ा प्रोटोकॉल होता था उसका। और लेकिन कभी इस तरह से भी हुआ कि जब हम कभी बीमार हुए या कुछ हुए तो एक स्पेशल ऑफर होती है अब्बू के, बिस्तर में जाके सो जाओ। तो उसका मतलब ये होता था उधर जाओ और जाके शफा पाओ। बिल्कुल सही है ना, ऐसे है ना कि जाओ जाके शफा ले लो वहाँ जाके। तो अब्बू ने कहना अच्छा जाके सो जाओ। मेरे साथ ये होता था कि जैसे रात को जैसे 8 बजने ना, मुझे होता था बस सब मेरा पूरे दिन का कोटा पूरा हो गया, तो अब मैंने ना सो जाना। तो ड्रामा लगता था जब 8 बजे का, तब अब्बू ने बैठ के देखना, हम सारे बैठ के देखते थे। लेकिन मेरे ड्रामे में ना जैसे कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता, तो मैंने भागे भागे जाना, अब्बू को पिलो ला के देना, तब अब्बू ने ना ऐसे करके बैठ जाना। तो अब्बू ना जैसे वेट कर रहे होते थे कि अब से सारा कुछ होना है, पिलो ला के देना, अब्बू ने बैठ जाना। फिर मैंने पीछे बैठ के ना अब्बू के ना ऐसे ऐसे कंधे दबाना शुरू कर देना। अब्बू ने कहा शाबाश शाबाश शाबाश। तो बस मुझे होता था कि अब बस इतना सा मेरा काम होता था और उसके बाद मैंने तो जाके सो जाना होता। लेकिन अब्बू के साथ जो मेरी यादें हैं कि मैं क्योंकि जल्दी सोती थी, बहुत जल्दी उठ जाती थी सुबह जब सब सो रहे होते, स्पेशली छुट्टियों के दिनों में। तो मुझे याद है कि सुबह सुबह मैंने उठ के ना वो रेडी होना कि अब अब्बू ने जहाँ निकलना है ना, मैंने साथ मोटरसाइकिल पे जाना। तो हमने वो चबुर्जी चले जाना, मुझे गोश्त वाली दुकान भी याद है, अब्बू ने अंदर लेके जाना गोश्त की दुकान से, वहाँ से होके चबुर्जी से होके पुरान उधर पूरा होते 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 ये जो क्या कहते हैं बड़े नाले की साइड से हमने आना। फिर अब्बू ने वहाँ रुकना, एक दुकान थी जहाँ से अब्बू मुझे फुलियाँ लेके देते थे, मीठी फुलियाँ और पीकी फुलियाँ। मतलब वो एक मेरी रूटीन थी छुट्टियों की कि अब्बू को पता था सब सो रहे हैं, ये जाग रही है, और मुझे साथ मैं वो सारी सब्जियां लेती हुई, गोश्त लेती हुई, रोज़ जो रूटीन होती थी अब्बू की, मैं अब्बू के साथ। अच्छा, वैसे एक बात सारों को याद होगी, हम सब ने इकट्ठे मिलके भी अब्बू को दबाया और अपनी अपनी जगह पर भी सब टांगे दबाते थे, कोई कंधे दबाता था। अब मुझे याद है मुझसे थोड़ा सा जोर वाला काम करवाते थे है कि ये कमर पे ना जरा ऐसे जोर से ऐसे करके दबाओ। तो मुझे याद है एक दफा मैं दबा रहा ना तो अब्बू सो गए। अच्छा, वो सो गए ना, तो अब इसका मतलब ये होता था कि मैं अब हल्का हल्का दबाता रहूं, छोड़ ना दूं, क्योंकि जिस वक्त आपने छोड़ा नहीं उनकी आंख खुल जाती थी। तो मैं ना मेरे ख्याल 1 घंटा में दबाता रहा ऐसा ऐसे करके। तो फिर आपकी आंख खुली, ओए तो भी तक दबा रहा है? मैं जी चल जा, शाबाश ठीक है। तो तुम भी दबाती रही हो? अब्बू को बिल्कुल सब नहीं दबाया, अब्बू की सब नहीं दबाया। लेकिन एक दफ़ा इस तरह से हुआ कि रात में ना जैसे सारी सो गए, तो मैं भी थोड़ा लेट हो गई थी, 11 बजे का टाइम था, तो सारी लाइटें शाइटें बंद, सब सो रहे हैं सब कुछ। तो अब्बू ने आवाज़ देने के टांगे दबाने के लिए, तो मैं अब दबा रही हूँ, अंधेरा है, दूर दूर तक बाहर वो नज़र आता था खिड़कियों से, दूर दूर तक अंधेरा। आई डोंट नो उस दिन क्या था भाईजान, मैं अब्बू को दबाती जा रही। तो अब्बू ने ऊंची आवाज़ में मुझे दुआएं देना शुरू कर दी। वेरी सरप्राइजिंग था, वेरी, कि अब्बू ने कभी इस तरह से नहीं कहा जिस तरह हम लोग दुआएं तो देते हैं अपनी औलाद को, लेकिन कभी इतनी ओपनली नहीं देते हैं। तो मुझे नहीं याद पड़ता जैसे नहीं अब्बू ने कभी पानी पिलाए हो तो आपने कहा हो कि अच्छा बेटा जा शाबाश तेरा भला हो जाए, है कभी ऐसे नहीं कहा आपने? हाँ मुझे याद। अब्बू ने दुआएं देते जा रहे और मैं रोती जा रही और मैं खुश। क्या दुआएं ले ली तुमने? नहीं बतानी। कमाल था वो टाइम, वो कि रात के पहर में कोई भी नहीं जाग रहा और मैं और अब्बू जाग रहे, मैं अब्बू को दबा रही हूँ और अब्बू बस दुआएं देते जा रहे। सुभान अल्लाह। और ये जो अब्बू की शहजादी है, हाँ, ये जो एक्स्ट्रा फेवर्स लेती थी हर वक्त हर एक से, ये जो नादिया वासिफ है थी, ये अब्बू की शहजादी हुआ करती थी। हाँ जी, अभी भी है शहजादी है। इसके साथ ट्रीटमेंट हमेशा से लगा हुआ है, स्पेशल है ना? हर चीज में मेरे साथ आज भी ट्रीटमेंट लगी है, बिल्कुल ऐसे आउट ऑफ द वे जाते हैं, बिल्कुल। को बताया याद कोई बात? एक तो ये था ना भाईजान के इन्होंने कुछ बनवाना होता था ना, तो मुझे भेजते थे आके दूसरे की बात कर, वो तेरी बात मानेंगे, शहजादी कहते थे मुझे, तो शहजादी आवाज़ लगाते थे मुझे किसी चाहिए तो इनकी बात भी मैं जाके करती थी ना कि ये करते हैं, अच्छा मुझे ये करते हैं। फिर मुझे याद है भाईजान के जैसे अब्बू खाना खा रहे होते थे ना, उन्होंने वास्ते में शहजादी जी पेट में से निकालती ना बूटी,
जाके मैंने खा लिया। अच्छा है नहीं, अच्छा ये लीजिए, ये है वो आम देना भाईजान, आम की गिटक देनी, इस तरह की चीज़ें देने, ये जब मैंने जाके खा लेना ऐसे नहीं डाला जी, वो कहे अच्छा ठीक है ऐसे। ये बड़ी बात होती थी कि अबू के प्लेट में से मुझे रोटी मिल रही है, मुझे सालन मिल रहा है। मुझे अम्मी की एक बात याद है, ये जब जाती थी ना उसी की बात कि पूरी करवानी है, तो जाके इसने कई दफ़ा अब्बू से बात कहनी और उनके हाँ ना के इंतजार किए बगैर भाग के आ जाते थे, अबू मान गए। ये भी हुआ है बहुत दफा, अबू ने कह दिया, अबू ने हाँ कह दिया, अबू ने कह दिया, लेकिन ये कि फिर वो हाँ कह देते थे, कह देते थे, तेरी हाँ के ऊपर हाँ कह देते थे। हाँ मुझे तो बड़ा इस बात पे ना, मुझे इजाज़ से बड़ा मुझे लकी समझती इस बात पे कि भाईजान अबू को ना मेरे हाथ की ना रोटी बड़ी पसंद थी। तो रोटी बना लेती थी? हाँ मैं बना लेती थी, बहुत जल्दी सीखी, मैं बहुत जल्दी रोटी बनाना सीख ली थी, और उनको मेरे हाथ की ना रोटी बड़ी पसंद थी। हम कहीं जाते थे ना, कहीं बाहर जैसे गए जा साहब के घर गए, चाचू के घर गए, तो वो रोटी भाईजान मुझसे बनवाते थे और मेरे हाथ की रोटी खाते थे, मुझे आवाज़ देते थे दादिया जी मेरी रोटी तुम बनाओ, जी ठीक है, जाकर मैंने रोटी बनाने को ना खाना। तो मेरे लिए ये आज भी बड़े फख्र वाली बात है कि मैं अब्बू को रोटी बना के देती थी, उसको मेरे हाथ की रोटी पसंद आती थी। वाह भाई वाह, खाना ये आज भी बहुत अच्छा बनाती है वैसे। तब से ये प्रूफ था। हाँ, ये इसको सर्टिफिकेशन मिली है पहले से ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तुम्हारी क्या कहाँ से बातें शुरू करें, तुम्हारे पास तो ढेर बातें हैं। मेरे पास हाँ बिल्कुल, मैं तो बस ये कि बचपन जैसे अब्बू के साथ मुझे वो बड़ा याद है कि जैसे अब्बू ने हमसे खेलना, क्योंकि अब्बू वैसे बड़ी रिजर्व तबीयत के थे, बहुत बातचीत थी, लेकिन हमारे साथ जैसे उन्होंने बचपन गुजारा खेला हुआ है, ऐसे होता था कि हम ना अब्बू को ला के चापे को बिठाते थे, तो ये दोनों भी छोटी होती थी तो इनके ना अब्बू के कंधे पे चढ़ जाते थे, दोनों चढ़ गए हैं। अब्बू कहते कितने बच्चे हैं पीछे, तो हम कहते थे 2 हैं, तो हम तीसरी भी ना ऊपर चढ़ जाती थी, तो अब कहते 2 ही है ना, 3 तो नहीं, हम कहते नहीं थी अब्बू 2, अब्बू तीनों को लेके ना खड़े हो जाते, पूरे कमरे का चक्कर लगवाते थे, तो वो इतना वो अच्छा लगता, हम बड़े खुश होते थे कि हमने तो 2 का है लेकिन हम 3 है। तो अम्मी कहती थी ना उठाया करे तीनों को, तो हम कहते थे नहीं बेटियां ऐसे खुश होती हैं। तो फिर इसके अलावा फिर अब्बू को ना हम आपस में प्लान करते थे, अब्बू को आज हम डराते हैं, चलो कैसे अब एक बच्ची ना अब्बू को पकड़ के लाई चारपाई पे, हम बिठा देते थे अब्बू को, तो नीचे एक ना चारपाई के नीचे छुप जाती थी, जैसे आके बैठना ना तो नीचे से उसने अब्बू की फौरन टांगे पकड़ लेनी। अब्बू इतना प्यारा रिएक्ट करते थे, जैसे ना डर गए। अब हम अपने बच्चों के साथ जब करते हैं ना तो वो फिर फीलिंग याद आती है कि कितना प्यारा अब्बू हमारे साथ खेलते थे और सारा हमारे साथ पार्टिसिपेट करते थे, बहुत ज़्यादा वो ना इस तरह करके सारा बचपन। फिर इसके अलावा मुझे याद है हमारे साथ तो बहुत ही शक्कत से पेश आते, स्पेशली आपके साथ थोड़ा सा सख्ती का मामला था। लाड़ियां ना इन तीनों ने मुझसे बहुत ज्यादा लिए हैं, लेकिन प्यार मुझसे करते थे। प्यार आपसे बहुत ज्यादा करते थे, लेकिन थोड़ा सा सख्ती से। मैं जरा था ना थोड़ा रिबेलियस, बिल्कुल ऐसे भागने वाला। याद है एक दफा हम दादा साहब गए थे, अब वो पहली दफा हमें लेके कहीं गए, क्योंकि हम लोग कहीं नहीं ऐसा जाते थे, तो दादा साहब हम तीनों और आप भी साथ थे, हम लोग गए वहाँ पे जाके ना, आप यकीन करें हम छोटे थे, हमने जिस खिलौने पे हाथ रखे जो मांगा है, तो अब्बू ने हमें लेके थे। आप यकीन, जब हम आए इतने थैले, मैंने क्या नादिया ने क्या कुछ, हम सब ने ले लिया। आपने शायद पता नहीं एक बॉल ले लिया या कुछ ऐसे कर, एक टॉय कोई था आपके पास, तो अब्बू ने हमें ले लिया। ये क्या, तो इतने ढेर सारे आपने ले दिए, भाजी को एक ले दिया। आज बेटियों का दिन था, आज बेटियों को मैं लेके गया, तो ऐसे हमने टी सेट कितना अर्सा यूज किए, फुल पत्थर वाला था, प्लास्टिक वाला, हमारे डिफरेंट कलर्स के थे ना। अच्छा 3 मेरा भजन ख्याल से मोहब्बत से बड़ा मैं संभाल के उसको रखा, बड़ा सब मैं खेला उसके साथ। मुझे याद है दोपहर को ना जब अब्बू ने सो के उठते थे ना, तो वो कपड़े चेंज करते थे, तो अब्बू जब कपड़े चेंज करते थे तो अब्बू के साथ मेरी डील हुई थी, अब्बू ने आपने ना उसमें 8 आने छोड़ने एवरीडे। तो अब्बू ने ना कहना कपड़े उतार के ये जो कुछ सिया को दिया, कपड़े उतार के ना, तो मैं बाहर ही खड़ी होती दरवाजे के कि अभी पैसे आ रहे हैं।
तो मेरे ना तो अभी भी कपड़े दामी कहते वो कह रहे हैं ये जाओ धोने के लिए रखा, तो मैंने जल्दी से जाकर शॉकेट चेक करने, और रोज क्या खाने उसमें मेरा लगा हुआ था महाना जो खर्चा है अबू की ये कपड़ों से ना हमें जेबें चेक करने का बहुत शौक था। अबू ना जैसे जान के छोड़ देते थे ना कॉइन वगैरह, तो हमें होता था अबू के कपड़े हमने चेक करने जरूर, उसमें कुछ ना कुछ हो ही जाता। एक दफा क्या हुआ, मैंने चेक किया उसमें पैसे नहीं थे, तो मैं तो रोना शुरू हो गया। मैंने अम्मी से कहा, तो अब्बू ने तो पैसे नहीं दिए। अब्बू को मैंने कहा, वो अम्मी कहती है तो पैसे नहीं है अंदर, तो वो रो रही है बाहर। अब्बू कहते नहीं गलत कमीज है, गलत ये गलत कमीज है, खैर दूसरी वाली भेजता हूँ। दूसरी वाली भेजी तो उसमें 8 आने थे, तो वो मेरा खर्चा चल रहा। ये सबके जाके अब्बू को ये होता था कि बेटियों के साथ ही मोहब्बत शफकत कितनी बड़ी बात है ना माशाल्लाह से। हर और बड़ी खास नजरे करम जो उनकी होती थी ना, कि ये कि हम जिस तरह बच्चों को कहते हैं स्कूल जाना है आपने ये करना वो करना, तो अब्बू की जो शफकत का ये आलम होता था कि हाँ बस सामने रखना है, पढ़ाइयाँ होती रहती हैं, सारी जिंदगी पढ़ाइयाँ होती याद रहती हैं। है मेरे स्कूल में ये 1 साल मेरे साथ रही, मैं 5वीं में था तो ये पहली में गई थी, तो गेट पे अगर इन्हें रो पड़ना है ना, वहीं से वापस गेट, स्कूल के गेट। आज तो जरा बड़ा कहते हैं ना बच्चों की छुट्टी हो गई है, क्यों छुट्टी हो गई है, आप बिल्कुल इजी होते थे इस मामले में कि रो पड़ी है तो आपने कहा चलो वापस गेट से वापस। मैं तो इतनी दफा वापस आई हूँ, इतनी दफा वापस है कि गेट कीपर ने कहा कि आप रोज इसलिए ले जाते हैं तो पढ़ाएंगे कैसे आप इसको, आप रोज ले जाते हैं इसको वापस। तो मैं तेरे को कब इतने सख्ती से कहा है कि पढ़ाई करो, ये करो, ये पढ़ो, ये याद करो, मुझे तो नहीं याद करता कभी भी। मैं सिखाओ बिल्कुल नहीं कभी डांटा इस बात पे, कभी भी नहीं। मैं तो बल्कि अम्मी मुझे कहती थी ना किचन में आके जरा ये काम करो, चलो ये काम करो, आज किचन में आ जाओ। अच्छा फिर जोर तो मुझे भी याद है कि कभी ऐसे नहीं दिया, हाँ जी, लेकिन किस तरह से छोटी छोटी बात बताते थे, वो तो बता रही थी मुझे सैंड का जैसे। हाँ मैंने हाँ तूने बताया था कि छोटी छोटी बात हो ना, वो छोटी छोटी बात बतानी और इंग्लिश हर एक चीज की बतानी, जो उस जमाने में हम लोग हैरान होते हम थे लोग कि थे जो कि उर्दू मीडियम थे सारे के सारे, बिल्कुल, और अब वो हमें सारी चीजें ऐसे राह चलते जो ऐसे हम सबक देते थे। अब क्लास में 5-6 क्लास में थी मैं, तो टीचर कुछ बता रही, तो मैंने कहा भाई ये रेस की क्या इंग्लिश होती है ना, किसी को पता नहीं। मैंने हाथ क्या वो ये राह आपको किस तरह पता? मुझे याद है अब्बू ने बताया ये जो पढ़ी होती है सैंड होती है, इस तरह करके छोटी छोटी इसी अब्बू हमें कहते थे डिक्शनरी पढ़ो। हाँ हम डिक्शनरी पढ़ते थे, याद करते थे, डिक्शनरी के रोज के वर्ड्स याद किया करो, हम याद करते थे। मुझे याद है मेरे स्पेलिंग बहुत अच्छे होते थे, बहुत ज्यादा अच्छे, तो वो डिक्शनरी की वजह से होते थे। अब अब्बू ने कहा कि इसको याद किया करो, इसको पढ़ा करो। हालांकि कभी हम लोग डिक्शनरी जो है ना वो हमेशा यूज करते हैं मुश्किल अल्फाज ढूंढने के लिए, तो एक दिन अब्बू ने मुझे कहा कि डिक्शनरी को एज अ बुक क्यों नहीं पढ़ते तुम, कि बस पढ़ते जाए करो और मतलब सामने आते रहेंगे, तो ये भी तुम्हारी मेमोरी के अंदर चलती रहेगी बात। तो उर्दू की भी मैंने पढ़ी, इंग्लिश की भी जितनी को मुझे समझ उस वक्त आ सकती थी, तो वो मैंने पढ़ी उस वक्त। डिक्शनरी का बड़ा आपको था, और जो अब्बू की डिक्शनरी थी ना वो बड़ी वाली मोटी वाली जो जिसमें अरबिक और उर्दू मिक्स होती थी, उसकी हालत खराब हो गई थी, वो इतनी यूज होती ना वो। फिर अब्बू ने ये भी बताया कि डिक्शनरी देखते कैसे, कितना मुश्किल होता है डिक्शनरी के अलिफ पे और बिल्कुल बताया कि डिक्शनरी को देखना कैसे होता है, किस तरह से। हाँ बस वही ना नजरे करम इस हद तक थी, बल्कि स्कूल तो मुझे नहीं याद पड़ता कि हम कोई भी वीक 7 डेज को 5 डेज स्कूल गए, कभी भी नहीं ऐसे हुआ। छुट्टी बीच में आ जाती है, वो एमी काम खा जाती थी, किसी को खांसी आ गई तो कल छुट्टी, पहली रात को अनाउंस हो जाता था सुबह छुट्टी है ना जी, चलो शुक्र है। पेपर की छुट्टी दिख रही थी पेपर की। हाँ मैं साइंस का मेरा पेपर था 7 में, वो साइंस का पेपर है, तैयारी शारी हुई भी, सब कुछ ठीक चल रहा बिल्कुल। सुबह मैं उठी हूँ, आँख खुली घड़ी पे 10 बजे, 10 इधर देखा ना सादिया, इधर देखा ना नादिया, दोनों नहीं है। मैं उठ के भाग के मिली, अम्मी मेरा पेपर। अम्मी कहती नहीं सुबह उठाया था तुम्हें, थोड़ा सा गर्म लग रही थी, उन्होंने कहा बुखार आ, छुट्टी। छुट्टी पेपर वाले दिन सामने से बुआ गए, अब्बू जी मेरा पेपर। अब कहते कोई नहीं पेपर रोज होते हैं, जाओ अपना ख्याल सो जाओ थोड़ी जी। अच्छा आपको परवाह नहीं है तो मुझे क्यों परवाह है, कोई ऐसी बात नहीं। तो अपने जिंदगी बस ऐसी गुजारी गई। और पेपर में उस पूरे टर्म में जो पेपर्स एग्जाम से मैं 3rd आई थी क्लास में, एक पूरा साइंस का पेपर दिए बगैर। तो टीचर ने कहा बेटा आपको तो 10 नंबर और चाहिए थे,
फर्स्ट आने के लिए, तो मैं कहा शायद अब्बू ने कहा नहीं फर्स्ट आने की जरूरत नहीं है फिलहाल, तो आप रह नहीं दे फर्स्ट आने के। तो बस वो मैंने अब्बू को बताया, वो कहते ठीक है तो पेपर रोज होते। मैं कहा ठीक है जी। अब मुझे याद है मैंने अभी तक ना मतलब मैं काफ़ी सारी महफिल में गया हूँ जैसे जैसे जॉब शिप के दौरान ना मैंने पूछा कई लोगों से कि वो पाई की अंग्रेजी बताना, तो मुझसे ये सरकार ने ये पूछा था ना कि पाई की अंग्रेजी क्या होता है, मैं कहा फीट कहते हो, गुड फीट, हेड फीट है सिरी पाई, तो आपने कहा नहीं पाई को ट्रॉटर्स कहते हैं। तो वो मुझे पहली दफा पता चला। मैंने फिर बाद में कई लोगों से पूछे, किसी को नहीं पता था कि पाई की अंग्रेजी क्या होती है। तो इंग्लिश आपकी बड़ी हाई थी, जबरदस्त किस्म की। बल्कि मैं बताता चलूँ यहाँ पर के जो सरकार की किताब है ना जी, किरण किरण सूरज, उसकी जो पहली ट्रांसलेशन है वो अबू ने खुद की, बीबी सोल की, कहीं से ना किसी ने करके भेजी इंग्लिश। तो आप वो देख रहे थे तो आपको ना पसंद नहीं आई, तो वो रेड 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 सारे जितनी भी वो भेजी थी ना अंग्रेजी सारी रेड, फिर आपने खुद की सारी। और मुझे याद है इसमें तो मुद्दे भाई ने भी कई मुझे वाक़या सुनाए कि ये जो आपने ट्रांसलेशन की है ना ये तो कमाल ही हो गया। और वो अबू की इंग्लिश वो थी सही शेक्सपियर के दौर की। एक महफिल में ना किसी ने अपने को फिक्रा बोला, तो किसी ने कहा कि हुजूर ये फिक्रा किसका है, तो आपने कहा शेक्सपियर से कम किसका होगा। ये नहीं कहा शेक्सपियर क्या है, ये नहीं शेक्सपियर से कम किसका होगा। तो ये था बिल्कुल। तो ये वाली शहजादियाँ हमारी छोटी छोटी है, इसके कान छोटे होते थे है ना, अभी भी हैं है? इसकी भी ना बड़ी, इसकी बड़ी कहानी है। वैसे कान मेरे छोटे होते थे। अब्बू ने कहा था कान छोटे तो क्या होगा, जब ये बड़े बड़े सोने के कांटे पहनेंगे ना फिर हर चीज इसकी ना जो है ना खूबसूरत हो जाएगी। कहते फिर सबको नजर आएगा, फिर छोटे नहीं लगेंगे, छोटे नहीं लगेंगे। और फिर ऐसे ही हुआ कि सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट काम नहीं करने देते थे वैसे। अच्छा नहीं बिल्कुल नहीं, कल के आप जो यहाँ बैठ जाओ, मम्मी कहती थी किचन में आओ, नहीं बस कल के यहाँ बैठ जाओ, तुमने काम नहीं करने, तुमने करवाने, काम नहीं करने तुमने करवाने। मैं बाजार से लेके बुके पास आ जाती थी, मैं कहा ठीक है ऐसे रहिए। नहीं अब वो हम सबके साथ ही ना, जैसे उम्मीद करती थी कि इनसे काम करवाएंगे, आप जैसे लेते हैं, हाँ, हम भी अब ऐसे ही करती हैं। तो वो कहते थे छोड़ देना काम, क्यों कराती है, अच्छा चलो मुझे बता दे, ऐसे अम्मी को कहते थे। तो वो इतना अच्छा लगता था कि बब्बू की इतनी शफकत और साफ कि भाई इनसे नहीं कराओ मैं कर लेता हूँ। अब आके जैसे अब बच्चों के साथ मादी करते हैं इसका, तो वाकई में बेटियों के लिए शफकत जो है ना बाकी बहुत ही एक अलग सी चीज होती है। मैं भी इस हक में हूँ कि काम आना चाहिए, लेकिन इतना पढ़ा लिखा के फिर अगर आपने उसको शेफी बनाना है घर के बीच में, तो इतनी पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ तरबियत फिर किस काम की है। उस तरबियत का कोई काम लें, काम करने के लिए आप मुलाजिम रख सकते हैं, रखें, आने चाहिए आपको काम ताकि आप करवा सके। लेकिन जरूरी नहीं कि सारे काम खुद ही करने होते हैं। मैं खाना बना लेता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं कि अब्बू कितना अच्छा खाना बनाते थे, बहुत अच्छा खाना। बकरे ईद पे खाना जो नमक वाला गोश्त बनता था, हाँ जबरदस्त कमाल का, मछली वगैरह सब इस किस्म की सारी चीजें। शोरबे वाली मछली मैंने उस वक्त ही खाई थी मेरे ख्याल है, फिर शायद मैंने बनाई थी घर में यहाँ पर, तो दरमियान में मुझे कहीं से नहीं मिली। एकदम स्पेशल रेसिपी होती थी। एक दफे इस तरह से हुआ कि अम्मी वैसे तो कहीं नहीं जाती थी, लेकिन तब ना किसी की अम्मी की कहीं फैमिली में किसी की डेथ हुई तो अम्मी को कहीं जाना पड़ गया। अब अम्मी को जाना पड़ गया तो अब्बू ने कहा कि आप जाओ, तो मैं भी घर पे थी, हम सारे घर पे थे, तो ऊपर वाले पोर्शन में हम रहते थे, आपको पता मुझे किचन नीचे करके था। तो अब्बू के कब्र में ना फोन बजा, मैं भागी भागी गई ना, तो आगे न्याजी साहब तो कहते हैं क्या हाल है बेटा, मैं कहती अब्बू किधर है, मैं कहती अब्बू किचन में, कहते क्या कर रहे हैं, मैं तो खाना बना रहे हैं, कहते हैं अच्छा बेटा जाए बुला के लेके। तो जब मैं बुला के लेके अब्बू ने बादशाह से अब्बू ने बाद में बोला बेटा बात सुनो, जब कोई पूछे ना तो अब्बू किधर है, तो कहते हैं मैं देखती हूँ अब्बू किधर, ये नहीं कहते कि अब्बू खाना बना ठीक है जी छोटे मैं तो साफ साफ के खाना मतलब वो खाना ही इतना अच्छा बनाते थे, जबरदस्त खाना बनता था। उनको खाना बनाना अच्छा भी लगता था, बड़े
नजर आता शौकीन थे इस मामले में, गोश्त के मामले में स्पेशली गोश्त फिश ये दोनों आपको बड़े पसंद। फिर जहाँ से लेके आना स्पेशल, जब मैं जाया करती थी साथ, तो वो पता था वो आ कह रहे थे मलिक साहब आए आज जी आज, तो गोश्त का स्पेशल जो अबू का होता था पसंद का, वो जाके लेके आना। एक ही दुकान से गोश्त लाते थे, वो जो नाले के साथ नहीं होती थी दुकान, बस वो मुझे भी याद है, मैं भी कई दफा गया वहाँ पर। वो एक दफा ना वो मुझे याद है, मनान साहब ना, अपने मनान अंकिल मनान, उनको सरकार ने दिए पैसे कि ये जाओ ना अच्छा सा गोश्त लेके आओ। उन्होंने पैसे पकड़े जाने लगे, तो आपने कहा वो तुम्हें पता अच्छा गोश्त कैसे मिलता है? मनान अंकल खड़े हुए, कैसे मिलता है? आपने कहा अच्छा गोश्त तजर्बे से और नसीब से मिलता है। पहले तुम्हें तजर्बा हो कि अच्छा गोश्त होता है, नसीब है तुम्हारा कि तुम्हें वो मिल जाए। हर चीज को खास बनाना ना अबू को बड़ा ही कमाल आता था वैसे ना। और क्या कहते तुम्हारा फिर वहां से जो छुट्टी होगी स्कूल से, मैं माफी करके चला गया। ये जब एक साल मेरे साथ रही है तो उसमें आधा टाइम भी मेरी क्लास में रहा करती। ये आधी छुट्टी होती थी तो भाग के मेरी क्लास में आती थी, और मैं ऐसे डेस्क के नीचे छुपा के ना बिठा देता था कि छुट्टी के टाइम निकालूंगा, कोई देख लेगा तो कहेगा भाई ये तो पहली की स्टूडेंट है, ये यहाँ क्या प्रिंसिपल चक्कर लगाती थी, तो भाईजान के दोस्त भी कहते थे प्रिंसिपल आ रही है, काश इसको नीचे छुपा लिया। मैं ना वहाँ नीचे डेस्क में छुप जाती वो तो लड़की चीजें करती सारी ब्रेक भाईजान के जाया करके, भाईजान मुझे ये चाहिए, भाईजान ये चाहिए, और भाईजान मुझे ला रहे होते थे। सबसे ज्यादा पैसे इकट्ठे हमेशा उसके बाद पैसे इकट्ठे हुए, और इससे मैं हमेशा लेते थे, गाड़ी के डब्बे जो भी था। और एक टाइम था कि मेरे पैसे भी इसके पास होते थे सारे। अब्बू भी अपने पैसे मेरे पास रखवाते थे। हाँ, एक रुमाल सा होता था, उसमें अब्बू बिठे होती, वो मैं जहाँ पे रखती थी अलमारी में, मैं वहाँ रखती थी। छोटे मोटे पैसे कभी मोड़े शुक्र है नहीं पता था। अब फिर मेरे पास से खाते थे, फिर मांग लेते थे, फिर मैं दे देती थी, फिर वो फिर दे देते थे, फिर मैं रख लेती थी। लेकिन अपने जो है ना वो जो पॉइंट्स वाले हैं वो आप लेते थे। अच्छा, एक चीज मैंने हमेशा देखता था कि हमारे लिए इस्लामाबाद जाना, पिंडी जाना किसी ट्रीट से कम नहीं होता था कि जी छुट्टियां आई हैं जी, हमने अब जाना है जी, है पिंडी इस्लामाबाद। पूरे साल में वो वन टाइम ही तो होता था, छुट्टियों में काफी लोग आते थे हमारी तरफ, या हम लोग जाते थे, ऐसे इस तरह होता था। तो जाना बहुत। और एक खास बात होती थी कि अब्बू अपने अलावा हमें ठहरने नहीं देते थे कहीं पर भी, कि जहाँ मैं ठहरूंगा मेरे बीवी बच्चे भी वहीं पर मेरे साथ ठहरेंगे, नहीं तो नहीं ठहरेंगे। तो मेरी भी बड़ी कोशिश होती कि मैं खिसक जाऊं। अम्मी ने कहना कि मैंने बहन की तरफ जाना है, खाला की करते हैं, तो बच्चियों का भी शौक होता था, लेकिन आपने कभी नहीं और उस वक्त बड़ा बुरा लगता था, लेकिन बड़ी ब्लेसिंग थी इसकी भी। अब समझ में आती है ना कितनी प्रोटेक्शन थी। कई जगह पर मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया कि वही लोग उनकी गैर मौजूदगी में बड़े अजीब तरह के बिहेवियर्स देखे हैं मैंने, बड़े अजीब। तो मुझे वो सब फिर फील हुआ कि क्यों अबू इनको जानते थे, सबको जानते थे, हर एक के मिजाज को पता था, और हमारे भी मिजाज को पता था कि इनसे नहीं बननी। तो वो हमें बड़ा रिजर्व करवा के रखते थे अपने साथ, अपनी जैसे छत्र छाया में अपने परों के नीचे जो है, क्योंकि सारी जिंदगी ऐसे ही रखा है हमें, तो बाहर की हवाएं जो है तो लगी कोई नहीं। बस बहुत कम लोगों से मिलकर में इंटरेक्शन, अगर हमने कहीं नेबर में भी जाना है पूछ के, बहुत एक दो लोगों के घर जाता थी सिर्फ जाने की, हर एक के घर हम नहीं जा सकते। फ्रेंड्स हैं, साथ एक नेबर होती थी, तलत या सामने नंबर इसके दो वो किसी फ्रेंड के घर हम मुश्किल से इजाजत मिलती थी, बल्कि वो लेने आती थी, लेने आती थी, तो फिर वो आगे करते थे आप लोग अब्बू से पूछ लो, हमें मुझे इजाजत नहीं मिलती इनसे बुआ जी। कोई और वाकया बताओ, क्योंकि ये तो मुझे पता है, जो मैं पूछ रहा हूँ, जो मुझे नहीं पता वो बताओ मुझे। अब्बू की जैसे रात का वाकया मैं बता सकती हूँ कि जैसे दिन में तो चलो ये सब कुछ होता था, तो रात में तो हम सो जाते थे। तो रात जैसे अब्बू को हमने कभी वैसे ज़ाहिरी नमाज पढ़ते हुए मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन मैंने अब्बू की जान नमाज बिछी हुई हॉल में हमेशा देखी। फिर मुझे अब्बू को ये फील होता था कि अब्बू ये बैठे होते हैं, बैठे कोई एक दफ़ा सारी इधर करते हैं, एक दफ़ा सारी इधर करते हैं,
क्या करते हैं कभी बैठ तो मुझे कुछ अर्से बाद जैसे आइडिया होना शुरू हुआ कि जैसे हम इस्लाम में फिरते हैं, हाँ। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद बैठ के नमाज पढ़ते ये वो नमाज है या वो किस तरह से बिल्कुल गुमसुम कितने घंटे खोए रहते हैं, वो कहाँ होते हैं, वो क्या होता है, वो है क्या चीज़ ना। तो रात में भी जैसे मुझे एक दफ़ा इस तरह से हुआ कि मैं जैसे रात में बहुत ज़्यादा डर जाती थी, कभी लाइट चली गई तो मेरी फ़ौरन आँख खुल जाती। तो एक दफ़ा ऐसे मैं हॉल में सो रही थी तो मेरी ना आँख खुल गई, मेरी आँख खुली तो बिल्कुल अंधेरा, लाइट चली गई ना तो आँख खुल गई। तो हालांकि रोशनदान के पास थोड़ी थोड़ी लाइट है, तो मैंने आवाज़ देना शुरू कर दी, अब्बू अम्मी अम्मी। अब मुझे नहीं पता मेरे साथ सादिया नादिया सो रही थी, अम्मी कोई नहीं सो रही थी, मुझे समझ नहीं कि अम्मी किधर है। अब सारे सो रहे हैं, सारे सो रहे हैं, तो मैं उठ के ना अब्बू की चपाई के पास मैं अब्बू को उठाती हूँ, तो मैंने जाके अब्बू को ना अब्बू अब्बू, तो मैंने ऐसे करके हाथ लगाया तो मैं एकदम से डर गई ना कि बिल्कुल जैसे 100% साइलेंस था। मुझे जैसे बड़ा खौफ आया अब्बू को देख के कि शायद अब्बू नहीं है। ये मुझे उस टाइम इतना ज़्यादा खौफ है कि शायद अब्बू नहीं है। मैं वहाँ से दौड़ी पीछे, फिर मैं गई मैं दूसरे कमरे में, तब मैं ज़मीन बिस्तर नीचे से, मतलब वो वहाँ थे लेकिन वो वहाँ नहीं थे। जैसे मुझे हालांकि अब दोपहर में मेरे को उठाते थे जब वो जैसे ऐसे हल्की सी आवाज़ से उठ जाती थी, बल्कि हम लोग शोर मचाने से मना था कि भाई आँख खुल जाएगी, फोन उठा के साइड पे कर देना कि फोन से आँख खुल जाएगी आपकी। तो इतना तो कभी भी नहीं हुआ कि अब्बू को इतना हिलाए और तो ना उठे। हाँ, तो बड़ा मुझे खौफ सा आया ना, एकदम से मैं भाग के अम्मी के पास गई, तो अम्मी ने मेरे लिए मोमबत्ती और माचिस रखी हुई, फिर मैंने वो जलाई थोड़ी देर, फिर मैं अम्मी के साथ ही सो गई ना। तो लेकिन वो सुबह में उठी तो सब कुछ नॉर्मल था, तो लेकिन मेरे लिए बड़ा वो खौफ की बात थी कि ऐसे कैसे ना। हालांकि दोपहर में मैं और नादिया जो सर इतनी हिम्मत तो किसी की भी नहीं थी कि पूछ सके कि क्या हुआ था, ये क्या हुआ था। उसके शायद इतनी बहुत समझ भी नहीं थी हम लोगों को कि ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं। वो तो वक्त के साथ आप आके जब सोचते हैं कि कितनी चीज़ें थी जो कि आपने पहले हमें बता दी थी, और उससे हम कहते थे अब क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं हमसे, और फिर वो बाद में पता चले कि वाकई ये चीज़ें होनी थी हमारे साथ। और कई ऐसे नाज़रीन वाक़यात हुए कि हम लोग बताते नहीं हैं कि भी लोग कहेंगे या ये पागल है या हम पागल है ना। और वो लोग इतने अजीबोगरीब, और ये हम आंखों से देखे हुए सारे के सारे। ये बैठी हुई मेरी बहन, इसके गले में ना यहाँ पे गुठलियाँ सी बन गई थी। तो जब हमने टेस्ट करवाया तो पता चला कैंसरियस है, उनमें कैंसर है। तो घर के अंदर एक बड़ी टेंशन सी पैदा हो गई कि इतनी छोटी सी है, इसका ऑपरेशन होगा, अच्छा इसकी गुठलियाँ निकलेंगी, क्या होगा। मुझे खैर उस कैंसर का इतना अदराक नहीं था कि ये क्या बीमारी होती है, ये क्या ऐसा होता है, लेकिन इतना था कि भाई इसका ऑपरेशन होना है। और ये कुछ और अब्बू परेशान थे, यानी हर दूसरे तीसरे दिन मुझे एक्सरे के लिए लेके जाया जाता था, जाके एक्सरे होता था। और अब्बू जैसे ना मुझे ऑब्जर्व करते रहते थे, जैसे मुझे टेम्परेचर हल्का सा होता था तो ना जैसे हथौड़ी का ना हाथ लगाना, देखना, अच्छा ठीक है जो बस ऐसे कहना। मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, मुझे उस टाइम नहीं मुझे पता था, लेकिन हर दूसरे दिन जो है ना वो एक्सरे के लिए लेके जाते थे। मैं नॉर्मल था खेलती कूदती सारे। तो बस एक दिन उन्होंने बुलाया अंदर ऑफिस में, शादी किया, मैं गई, आके गई तो एक बाबा जी भी बैठे और वो के साथ ना बड़ी हंस के बातें कर रहे, ऊंची आवाज में हंसे। अबू भी बड़ी जैसे ना फन मूड में है, हंस रहे हैं, स्माइलें दे रहे हैं, अबू भी बहुत खुश है ना। मैं अबू का वो मूड देख के ना बड़ी खुश हुई कि आज अब कितने अच्छे मूड में है। बाबा जी कौन है, क्योंकि नहीं हमने वो देखे कभी, जो भी लोग आते हैं हम वो सिंगल टाइम भी आए थे। हाँ वो दोबारा नहीं आए कभी। हाँ शायद वो दोबारा नहीं। तो अबू ने कहा ये मेरी बेटी, मैंने इस्लाम किया। अबू के बैठ जाए उनके पास, अच्छा मैं ऐसे चेयर करके उनके पास बैठी, उन्होंने ऐसे मुझे देखा, उन्होंने कहा जी बेटा, जी मुझे तो पता नहीं कि मुझे क्या हुआ है। कहते हैं उन्होंने अपनी गर्दन पे यहाँ पे हाथ रखा, जहाँ पे पूछा था कि पुत्र कितने बड़ी हैं गुठलियाँ, तो इसने बताया कि यहाँ पे। मैंने अपनी गर्दन पे हाथ रखा, उन्होंने फिर अपनी गर्दन पे वहीं पे हाथ रखा, यहाँ पे। मैंने फिर उनकी तरफ देखा कि हाँ यहीं पे। उन्होंने ना बस आंखें बंद की, कुछ पढ़ा किया पता नहीं क्या। उन्होंने यूँ करके ना अपने हाथ से यूँ करके ना ऐसे जैसे उन्होंने फेंक दिया, ऐसे किया। फिर उन्होंने ऐसे मुझ पे फूका मारा, जाओ बेटा
मैं कहा, अबू मैं जाऊँ? अबू हाँ बेटा जाओ। प्रभु मुस्कुरा रहे अबू थे। मुस्कुरा रहे, मैं खुश। ये जब बाबा जी ने किए ना, मैं साथ खड़ा हुआ था, तो मैं बड़ा हैरान हुआ और मैंने ना सरकार को देखा तो आप ना ऐसे होंठ बंद से जैसे आप मुस्कुराते थे ना, हाँ, तो वैसे आप मुस्कुरा रहे हो और मैं बड़ा हैरान कि हाँ, ये क्या हुआ है अभी ये जो क्या? है ना सारे का सारा। हाँ, तो ये चली गई उसके बाद अंदर। लेकिन नॉर्मल बात है, ठीक कुछ है। दिनों के बाद जब हमने वो रिपोर्ट को दोबारा करवाई तो सब क्लियर था, सब क्लियर और मुझे बहुत बाद ये चीज़ पता चली कि मेरे साथ था क्या, क्योंकि मैं छोटी थी, मुझे नहीं अंदाजा था। ये होता था कि रोज एक्सरे होता है, तो उसके बाद ना मेरा एक्सरे हुआ ना बुखार हुआ। सही वो तो आपने फिर बाद में बताया कि इस तरह हुआ था। बड़ी तो ये बड़ी हैरत अंगेज है कि कैसे कैसे हो सकता पर है, देखो ऐसे हो सकता है। ऐसे हो सकता है जी। हमें तो बहुत जो है ना, मुझे कैसे हो सकता है, ये तो आज भी होता है हम्म, आपके सामने। तो मैं मिसाल बिल्कुल बैठी सिद्धि। तो भाई ये मैं छोटी सी आपको इसकी बात बता दूंगी। नादिया का ना बचपन में एपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन जी हुआ बिल्कुल, था। हाँ जी, वो भी एक कोई हाँ बिल्कुल, वो भी वो भी है ना। हाँ जी जी बिल्कुल। अच्छा, इसका ना चूंकि ऑपरेशन होना होता है तो वो ब्लड का हाँ भी जी, blood कहते हैं कि भाई पता अरेंज होगा। करके रखेंगे वो। तो इसका ब्लड टेस्ट करवाया तो इसका था O नेगेटिव। हाँ जी। तो फाइल इसकी शायद पता नहीं पुरानी कहीं पड़ी हो ना पड़ी हो, इसकी सारी जिंदगी हमें यही पता है कि इसका O नेगेटिव है। कि अम्मा जी इसका जैसा है O हाँ, हाँ जी, नेगेटिव, अम्मा जी। अब्बू का है O नेगेटिव और अम्मा जी का है O नेगेटिव, दादी अम्मा का। तो इसका O नेगेटिव। बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ कि वो O नेगेटिव वो ना रहा। वो चेंज हो गया। तो जब मुझे अपने टेस्ट करवाने थे, जब मेरा जैन होने वाला था, तो वो कहा कि जी हमें आपका ब्लड सैंपल चाहिए। तो सारा जैसे कंप्लीट टेस्ट होता है तो मैंने करवाया, तो उसमें आया भाईजान A पॉजिटिव। मैं कहा नहीं है, गलत है, ये यहाँ की ओर से करवाते। तो मैंने अपने मियाँ जी से उसमें कोई मेडिकल तुझे कोई प्रॉब्लम जी, भी हुआ था है ना? प्रॉब्लम भी, वो भी कॉम्प्लिकेशन थी, Complications काफी थी। कॉम्प्लिकेशंस थी उसमें। थोड़ा सा बता दे। अच्छा जी ठीक है। तो वो ब्लड ग्रुप हमने जब कहा, मैं कहा कहीं और से किसी और लैब से करवाते हैं, ये बातें ठीक नहीं आया। मैं मियाँ जी से मैंने कहा, कहते क्या बात है, बड़ी अच्छी लैब है ये। तो मैं कहा नहीं ठीक है, कहीं और से करवाते हैं। फिर यहाँ पे वो है चुगताई लैब यहाँ पे ना, तो फिर हमने वहाँ से करवाया। वो फिर भाईजान A पॉजिटिव आया। फिर आपको याद है मैंने आपको फ़ोन किया था कि भाईजान तुम्हें याद है वो मेरा क्या ब्लड ग्रुप? तो मैंने कहा वो नेगेटिव है। मैंने कहा भाईजान A पॉजिटिव आया था। कहते हैं याद है आपको A पॉजिटिव है? मैंने कहा भाईजान A पॉजिटिव आया। नहीं वो नेगेटिव था। मैं कहा हाँ जी वो नेगेटिव ही था, सारी जिंदगी रहा है भाईजान, सारी जिंदगी है वो नेगेटिव ही रहा है। अब मैं करवाती तो मेरा A पॉजिटिव है, उससे नेगेटिविटी कम खत्म हो करती गई है। बस। नहीं वो भी वैसे एक था मसला के ज़ाहिर है। बड़ी बात थी वैसे। वो भी बड़ी बात थी वैसे। और मेडिकली इस बात को लोग नहीं मानते। नहीं है ही नहीं, है ही नहीं, है कहते ही हैं नहीं। ये कैसे हो सकता है कि आपका ब्लड ग्रुप चेंज ही हाँ, हो नहीं, ना? हो ही किसी को नहीं बताएं सकता, तो वो बिल्कुल। यकीन नहीं ये पुलिस करता। करके एक दो लोगों से कहते नहीं आपको गलतफहमी हाँ, होगी, exactly, आपको इससे गलतफहमी यही जवाब होगी, है, ये हाँ। हो सकता नहीं, मेडिकली पॉसिबल नहीं। हमारी तरफ से भी यही जवाब है। हाँ ठीक है। हाँ मतलब मैं आपसे कहती गलती कि हो हाँ सकती चलें है। ठीक है। हाँ क्यों मुझे पता है भाईजान, हाँ, मुझे भी पता है जो इस बात वारदात का। मेरे साथ हुई है जो हाँ। वो मुझे पता है। इसका कोई मेरे ख्याल है मसला हुआ था, बेबी आने वाला था इसका जी, जी। कुछ ना, वो कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो गई और डॉक्टर ने इसको कह दिया कि भाई आप कल आके सर्जरी करवाओ। खत्म कर दिया। और इसका बड़ा मुझे ना वो दुखी सा फोन आया कैसे होगा। मैं अच्छा बेटा अल्लाह मेहरबानी करेगा। तो इसने फिर बताया रात को ख्वाब में ना, हाँ जी अबू आए थे और ख्वाब भी अबू है भाईजान। ये डॉक्टर ने सिर्फ मुझे कहा नहीं है, उसने मुझे ना बड़ी तड़ी लगाई कि बेटा जी मैं आपको ना लिख के दे रही हूँ कि ये ऐसे ही है, ये ख़त्म है, आप समझे इसको, ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, आप जहाँ मर्जी चले जाओ। हाँ मैं कहती कितनी सहस्त्रकी कर रही है, कोई दवाई कोई चीज़ ऐसे मुझे दे दें, कोई इंजेक्शन में ठीक हो जाऊँ, मैं आपको लिख के दे रही हूँ, ये नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता, आप जाए यहाँ से। मैं भाईजान रो पड़ी तक मैं घर आ गई। सुबह मुझे जाके अपना सारा प्रोसेस करवाना था जो उन्होंने कहा था मुझे। रात को ना भाईजान अब्बू मेरे ख्वाब में आए। अब्बू आए और उन्होंने से पैसे ना मुझे मुस्करा के देखा और कहा कि ऐसे उन्होंने मुझे इशारा किया। सुबह मैं उठी तो मुझे अब जहन में था कि अब्बू मेरे ख्वाब में हैं, वो कहती हैं चाहे कोई कंफर्ट है मुझे दे रहे हैं, मुझे था कि कुछ ना कुछ बताया कि ठीक हो सकता है।
तो जब मैं जहाँ जिस हॉस्पिटल में गई उसने मुझे कहा, सारे टेस्ट उसने मेरे किए, कहते आप क्यों मेरे पास आई हैं? मैं कहा सारा कुछ तो ख़त्म हो गया। कहते जाके एंजॉय करें, खाएं पिए, मजे मारें, आप बिल्कुल ठीक हैं। आप तो उसने कोई हैरानी का इजहार नहीं किया कि ये कैसे हो गया रातों रात? जो थी ना जिसने मुझे कहा था वो भी और डॉक्टर थी। अच्छा, वो भी जिसके पास हाँ। जाके करवाया, जाके मैंने प्रोसेस करवाना था, वो भी कोई और डॉक्टर। अच्छा। ऐसा था। दिल तो मेरा बड़ा किया कि मैं वापस उसके पास जरा जाऊँ, जाके हेलो हाय करके आऊँ, लेकिन मैं कह नहीं सके। उसको अपनी दुनिया में जीने दें, हमें जो चाहिए था ठीक है, ये अच्छा था जी, बिल्कुल। ये मेहरबानियाँ जो है ना, ये हम अभी भी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कहीं ना कहीं महसूस करते रहते हैं अभी भी। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बट जहाँ तक प्यार था आपका वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि इतनी कम एज थी अबू ने जब पर्दा निभाया, तो लेकिन एक ऐसी ट्रेनिंग जो वो कर गए उस प्यार के साथ साथ हमारे नफ्स की जो ट्रेनिंग थी, बड़ी बड़ी जालिम किस्म की ट्रेनिंग, आज तक समझती हूँ इतनी टफ ट्रेनिंग थी हमारी, बहुत ज़्यादा कि हमारे हालात उस तरह से तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे नहीं थे। हम लोग एक टाइम पे एक मोटरसाइकिल, अब्बू, अम्मी, मैं और तुम तीनों, हाँ बिल्कुल हम फिट होते रहे उसके ऊपर। 5 जी है ना जी, 6 जी है, मतलब इसकी शादी और हालात की तंगी, ये तो चलो खाई था, है ना, फिर बेतहाशा रिस्क, बेतहाशा, ठीक है, रिस्क की फरावानी, हालात की तंगी और बच्चों की तरबियत है कि प्यार अपनी जगह पे, शफकत अपनी जगह पे, नज़र करम अपनी जगह पे, ऊपर से तरबियत का ये आलम कि नफ्स की ट्रेनिंग की है। ओए होए होए, पहली बात तोड़ देते थे ख्वाहिश को ना, ऐसे पहली बात ना ख्वाहिश नहीं पैदा होती थी हमारे अंदर, मतलब क्या ख्वाहिश पैदा होनी, जबकि कभी बाहर नहीं निकले, हमने किस चीज़ की ख्वाहिश है, फिर ख्वाहिश भी पैदा करनी, ये इस्लामाबाद जाना, जो हमारी तो दुनिया जहाँ की पूरे साल की एक एंटरटेनमेंट होती थी, इस्लामाबाद जाना है, फन करेंगे, कज़न ये वो, कितने एक्साइटमेंट होती है, सामान सारा कुछ जी, हाँ जी रख दो, गड्डी रख दो, सारा कुछ रख दो जी। अब अबू ऑफिस में बैठे हैं, बाहर गाड़ी में बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, आपको याद है हम दुआ करते थे अब्बू का कोई फोन ना आ अबू जाए, का फोन ना आ जाए कि अबू अगर फोन पे लगे और देर हो गई, अब्बू ने कहना है कि नहीं बस सामान निकाल लो। थोड़ी देर बैठे जी, फोन आ गया, कोई फोन आ गया, पता नहीं किसका, बाबा हमें किसका फोन आ गया, किसका फोन आ गया, किसका फोन है, तो अंदर से बात, सामान निकाल लो, हम नहीं जा रहे, ये शौकत आ रहे, क्या चाचू आ रहे, बाप चाचू के पास नहीं जा रहे, तो लिटरली इतना मुश्किल इम्तहान, और इधर रो तो उधर रो, हम लोग रोते ही रोते रहते थे कि फिर याद है वो जो हॉर्स एंड कैटल शो जाने का प्रोग्राम अब्बू ने बनाया, और हमें क्या पता कि हमने कहीं जाना भी होता है, अब्बू ने बनाया जी वो प्रोग्राम के, हाँ जी हॉर्स एंड कैटल शो जाना, मैं तो पहले अब्बू और जाने अरे मजाक वाली गल तो पहले पता होता था अब्बू और हॉर्स एंड कैटल मजाक, ठीक है ना, तो फिर वो कुछ दिन गुजरते हैं, भाईजान को टिकटें ले ली हमने, अली भाई ने टिकटें ले ली अम्मी, वो कितने यू नो वो, फिर अम्मी ने जिस दिन जाना था, मैं कहती कपड़े तो इस्त्री कर लो, मैं कहा ना नहीं रहना, मैं कपड़े कभी भी नहीं इस्त्री करूँगी जब तक उधर से बुलावा नहीं आएगा कि अब्बू कुछ नहीं कह देंगे। वही हुआ कि वो कपड़े इस्त्री पड़े 6 बजे का शो था, सर्दियाँ थी तो अंधेरा भी हो जाना था, 4:30 का शो था, 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, 6:30 बज गए, कपड़े तैयार पड़े, वो अंदर से ऑर्डर नहीं आ रहा। अब इधर से दरवाजे जो ऑफिस का, उसको ठक ठक करने की हिम्मत नहीं कि कौन करेगा ठक ठक के अब्बू को पूछने के लिए अब्बू कब जाना है, कि अब्बू जी कब जाना है, तो ये सारे अब एक दूसरे को हालांकि दरवाजा खटकाना, तो मैंने जाके ना कहा सब ऐसे कि अब्बू अंदर से जोर से बताते हैं और क्या बताना था, वो तो सीधा इनकार वो 8 बजे 9 बजे जब अंदर आए जो एक रोटीन हम लोग लिटरली ना जैसे दोनों बहुत रो तो लगा रही, तो गुस्सा लगा चढ़ावा, तो मैं जैसे पहले पता था ये तो नहीं रोना नहीं कड़ी गल है, तो मैंने इनसे कहा वो बात भी अब्बू की तरफ से थी, ये बात भी अब्बू की तरफ से, तो रोने की क्या बात है, अब्बू आके सबसे पहले सादिया सामने आओ, क्या बात है, रोने की क्या बात है, नहीं कोई रोने की जरूरत नहीं। तो नफ्स की इस कदर ट्रेनिंग, इतनी ट्रेनिंग, ऐसा नफ्स कर दिया कि
خواہش کی بھی خواہش نہیں رہی زندگی میں. وہ اتنے سارے حالات سے گزرے ہیں تو نفس اپنے کنٹرول میں کہ آپ نے کبھی نہیں مس ہو جائے. یہ ساری تربیت کی آگے جب پریکٹیکل لائف شروع ہوئی اس میں جب ہم نے دیکھا کہ ایک نفس کو انہوں نے ہمیں کنٹرول کرنا سکھایا. آپ یقین کریں میں حیران ہوتی ہوں کہ لوگوں کے گھروں میں لڑائیاں اس بات پہ جو چیز یعنی ہمارے تو خواہش ہی نہیں پیدا ہوتی. میری فرینڈس کہتی ہیں تیری لگی تم گئی. میں کہ نہیں یار تم کیوں نہیں جاتی. میں کہ نہیں بس نہیں جاتی. لے لیا سوٹ ایک پہلے لے لیا بس کافی. کتنی سیل دیکھی ہے تم لے لے. وہ خواہش ہی نہیں کبھی پیدا ہوئی کہ اب میں نے یہ بھی لینا وہ بھی لینا. مل گیا الحمدللہ. نہیں ملا تو کوئی وہ ہے ہی نہیں کہ بھی لینا ہے مجھے یہ کرنا ہے. جیسے وہاں میں چلی گئی آسٹریلیا میں تو آپ لوگوں سے تو رابطہ ہی بڑا کم رہا. تو وہاں بھی ویسے جیسے ٹھیک ہے ہو رہا جو نہیں ہو رہا. تو وہاں پہ بھی ایسے ہوئے کہ جیسے یہاں پہ حالات ہمارے اتنے خاص اچھے تو نہیں رہے کہ ہماری خواہشات ہر دوسرے دن پوری ہوتی. تو ہمیں خواہش پوری کرنے کے لیے بڑی ایفرٹ کرنی ہوتی تھی نا. اتنے پیسے اکٹھے ہوں گے تو ایک جوتا ملے گا یا سوٹ ملے گا تو یہ ہوگا. تو وہاں نہیں. تو جب میں نے جا کے کہنا کہ مجھے یہ چیز پسند ہے آسم کہنا لے لو. میں کہتی تھی یہ چیزیں ایسے پوری ہوتی ہیں کہ آپ کہو اور آپ کی ہو جائے. ایسی خواہش پہ ہی چھوڑو دفعہ کرو. ایسی خواہش کو پورا کر کے کیا کرنا جو کہ ایزی ہے. میری بھائی جان آدھے سے زیادہ خواہشیں اس لیے مر گئی کہ وہ سامنے پڑی. میں نے کہنا یہ لینا ہے لے لو. میں نے نہیں لینا. میں نے کہنا اچھی چیز اچھی لے لو 2 لے لو. دونوں ہی لے. لٹرلی میری ساری خواہش مجھے جن چیزوں کا شوق تھا وہ اتنی آسان ہو گئی کہ شاید صحیح بات ہے. پھر وہ چیز نہیں رہی. اور زندگی ایسی نہیں آسان. بلکہ مجھے آپ کی ایک بات بڑی زیادہ یاد ہے. بلکہ میں نے اپنی فیملی میں یہ بات اپنی شادی کے 10 سال بعد ایکسپوز کی. تو ایک دفعہ ایسی کوئی ذکر ہو رہا تھا تو میں نے کہا بھائی جان نے مجھے ایک بات ایک ایئرپورٹ پہ گئی تھی. بھائی جان نے یہاں سے نکلتے اس نے کہا تو مجھے پیار کیا. مجھے کہتا ہے کہ یہ مت سمجھنا تم وہاں کے لیے لیکن کبھی میں یہ نہ سنوں تمہاری وجہ سے وہاں کبھی لڑائی. تو یہ میں نے بات ایسے نا کوئی ذکر ہو رہا تھا کسی کی لڑائی شڑائی کے. تو میں نے کہا میرے بھائی نے تو آصف نے کتنی دیر چھپ کر گئی. اور پھر یہ کو دیکھنا سناٹا کہ تم نے آج تک اپنے بھائی کی اس بات کا پاس رکھا ہوا ہے. میں کہا میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ میری فیملی میرے بہن بھائی میرے باپ ہی ہے کیا کہتا ہے. اس نے مجھے کیا کہا وہ بات ایسی پلے سے باندھی. میں نے آج تک وہ اللہ کا بڑا کرم ہے سینا بھائی کبھی ایسا نہیں ہوا. الحمدللہ کبھی ہوا نہیں. مجھے یاد ہے ابھی امر جی نے واقعہ سنایا مجھے کہ چاول کی بوری بڑی بڑی ہیں تو ابو نے کہا کہ اس کے نا حصے بناؤ بوری کے. تو بوری کے حصے بنائے گئے یہ شوکت کا فلانے کا آپا کا. وہ پوری بوری نا امی سے پوری اسی وقت ہی بٹوا دی. یعنی گھر میں بوری آئی ہے چاول کی اور وہ بوری لفافے بنا کے پیک ہو گئی. تو وہ پیک جب ہو گئی تو آپ نے پھر پوچھا امی سے کہ ساری بوری تم نے بانٹ دی تمہارا دل نہیں کیا کہ گھر کے لیے بھی ہونی چاہیے. تو امی نے کہا کہ جی آپ کے بچے آپ جانے گھر جانے مجھے تو کوئی ضرورت. اب دیکھو یہ بھی نا اس ٹریننگ کا ایک حصہ تھا جو خاموشی سے کہیں پہ ہو رہی تھی. ورنہ امی شاید موقع پر ہی لڑ لیتی کہ بھائی آئی یہ چیز تو ساری بانٹ دی آپ کو رکھنا ہی نہیں گھر کے لیے. تو وہ ساری بانٹ دی بغیر کوئی اعتراض کیے ہوئے کسی بھی چیز کے اوپر. تو بوری جب بانٹ دی تو اگلے دن ایک نئی بوری آ گئی چاول کی. تو آپ نے کہا یہ بوری اب صرف تمہارے لیے ہے نا جی. اور وہ چیزیں جب آتی تھی نا مطلب مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں کبھی نا کوئی ہرس نہیں ہوا کہ ہائے فلاں چیز نہیں کھائی ہم نے فلاں کھلا ہر چیز. مطلب ہماری سادہ لائف تھی. دسترخوان بچھایا سارے اکٹھے بیٹھے اور ہم نے جو بھی کھانا بنایا ہم نے ساتھ کھانا کھایا اکٹھے ساتھ. پتیلے میں آم ٹھنڈے کرنے کے لیے رکھ دیا. ہر چیز ہم نے کھائی ہے. یہ نہیں کہ یہ نہیں کھایا وہ نہیں کھایا. ماشاء اللہ ہر نعمت ہمارے گھر میں ہوتی ہے ہم کھاتے تھے. بے شک ایسی یاد مجھے وہ واقعہ بھی ہے کہ کوئی آیا ہمارے گھر میں اور پھل چھپا کے ہمارے گھر میں رہتے ہوئے پھل چھپا کے خود کھا رہے تھے.
ہے نا, بس ایسے ہی ہے. اور جو ہاں لیکن اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ اس کا جواب تھا وہ بیسیکلی کہ کوئی فیملی ہمارے گھر میں آئی تو انہوں نے نا, جیسے ہم کمرے میں بیٹھے تھے, دوسرے کمرے میں وال پہ ریفلیکشن پڑا, تو امی ابو بیٹھے ہوئے تھے, میں بھی وہیں پہ تھی, تو ایسی باتیں شاتیں کر رہے, تو انہوں نے دیکھ رہے تھے ریفلیکشن میں کہ ان کا بیٹا کوئی فروٹ کھا رہا ہے, تو وہ کھاتے کھاتے باہر بھاگنے لگا, تو ان کے ابو نے نا پیچھے سے کھینچ لیا کہ باہر سارے بیٹھے ہیں تو کھا کے جاؤ. اتنی سی بات ہوئی سامنے, تھوڑی دیر گزری نہیں تو فروٹ کی پیٹیاں, اتنا فروٹ, دسترخوان لگا تو سارا پھل سے بھر گیا. تب یہ کہنی ہے اس کا الدا جواب ہے کہ تم یہاں پہ ایک فروٹس پا رہے ہو کہ مجھے شیئر نہ کرنا پڑے کسی سے, تمہیں کیا لگتا ہے دریا, آپ کو کیا لگتا ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ صرف پھل کی بات ہو رہی ہے, ابھی تو ہم نے ظرف کی بات نہیں کی, ٹھیک ہے. اب کیا ہمیں ظرف نہیں ملا ہوگا ابو کی طرف سے, کیا ہمیں خون میں وہ چیزیں نہیں ملی ہوں گی؟ بالکل ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ بھائی نہیں ایسے نہیں تو ایسے نہیں, ان کی اولاد ہے تو کیا ہماری زیادہ اتھارٹی اور ہم زیادہ, میں کہتی نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہاں ایکسپوز کرنا, باتیں بتاتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا واقعہ, یہ واقعہ ہو گیا, لوگ کتنی باتیں ہمیں کرتے ہیں, یہ ہو گیا تو یوں ہو گیا, ایسے بڑی باتیں بتاتے ہیں آ کر ہمیں. تو وہ کسی نے ایسے مجھے بھی ذرا بڑی ڈھینگے شینگے باتیں کی, بڑی باتیں کسی نے بتائی, مجھے ذرا تھوڑی دیر کے بعد ابو ہمارے خوابوں میں ان کے آ جاتے ہیں. بڑا مجھے ہوا یہ والی بات کہ باتیں کرنے والی یہ کہ ان سے بات کرے گا, ابو یہ کیا بات ہوتی ہے بھائی. تو اس کا جواب مجھے مل گیا. پھر رات کو پھر ابو بھائی جان آئے خواب میں, وہ دفتر میں تھا نا بھائی جان, اورنج کلر کا ٹیلی فون ہے نا, میں نے یہ دیکھا کہ ابو وہاں پر ہیں اور ان کے ہاتھ میں پیپرس ہیں کافی سارے, ساتھ ان کے لوگ ہیں, اور ابو نے اس اورنج والے فون سے نا مجھے فون ملایا خواب میں, اور انہوں نے اتنا کہا کہ فکر نہ کیا کرو, میں ادھر ہی ہوں تمہارے ساتھ, بس میں مصروف ہوں لوگوں کے لیے, میں اپنا کام کر رہا ہوں. ایسے نے کہا مجھے فکر نہ کیا کرو, میں ادھر ہی ہوں. اور یہ انہوں نے پہلے سے فون جیسے ہوتا تھا نا کہ ہمارا کوئی وقت ایسے نہیں ہوتا تھا کہ یہ نہ پتا ہو کہ ابو کے ہم لوگ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں. بالکل تو وہ ابھی بھی ایسے ہی ہے, بالکل ایسے صحیح کہنا, بالکل ایسے ہے. ذرا سی پریشانی جو ہے نا وہ ایسے, پھر ہم جب خیال کرتے ہیں ابو کا تو دعا کرتے ہیں, آپ یقین کریں وہ ایسے حل ہو جاتی ہے جیسے وہ تھی ہی نہیں. اور یہ نہیں کہ صرف فزیکلی ہو جائے, وہ ذہن سے بھی ایسے صاف ہو جاتی ہے پریشانی کہ ہم کہتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ نا ابو نے مجھے کہا کہ جب کسی کے لیے دعا کر رہی ہو نا تو پہلے اپنے آپ کو اس کے نا شوز میں کھڑا کرو, پھر اس کے لیے دعا. تو میں نے یہ بات سن بڑا حیران ہوا کہ میں نے کیوں کرنی ہے کسی کے لیے دعا, آپ بیٹھے ہوئے ہیں خود ہیں, مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی کے لیے دعا کرنی ہے. تو اب کتنے لوگ اس ریفرنس سے آتے ہیں, تو میرے پاس وہ فارمولہ پکا پڑا ہوا ہے کہ اس کا فارمولہ یہ ہے کہ اس کیفیات کو اپنے اوپر طاری کرو جس میں سے وہ گزر رہا ہے, پھر اس کے لیے دعا کرو گے تو تمہاری دعا مستجاب ہوگی. تو ابو نے تب یاد نہیں میں آپ کو واقعہ سنا تھا, میں نے تبھی کہہ دیا تھا خبردار ہم پر دعا دینے کے لیے پہلے نہیں, دعا دینے کے لیے پہلے نہیں. ابو کا آپ جیسے کہہ رہے ہیں آپ کو ابو نے کب کہا تھا دعا کے لیے, تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم بیٹھے امی ابو میں ہم لوگ بیٹھے, تو امی نے ایسی کسی بات پہ کہا کہ میں تو ناراض ہو کے چل جاؤں گی. کہتی نہیں تم نے نہیں جانا, میں جاؤں گا, اور جہاں میں جاؤں گا نا وہاں جھنڈے لگ جائیں گے, دیگے پکڑیں گے, وہ آپ لوگ بھی کھائیں گے اور دوسرے بھی کھائیں گے, میں جاؤں گا وہاں پہ, پھر تم لوگ آیا کرنا. تو وہ اس ٹائم نا ایک دم سے ایسے جلسی آ گئی, اب وہ کیا بات کر رہے ہیں, کدھر جانے کا کہہ رہے ہیں. تو وہ تو اس ٹائم نہیں, لیکن بعد میں جب ماشاء اللہ آپ دیکھیں وہی ساری باتیں اس ٹائم کی کئی باتیں جب بعد میں پوری ہوتی ہیں, اور وہ ساری باتیں پھر ایسے ریکال ہوتی گئی کہ باقی ایسے ہی تھا. آپ کو جیسے وہ واقعہ بتایا تھا کہ ابو کا ہم لوگ لگا رہے, تو خود سے بھی ساتھ تھی وہ, میں بھی ہم ابو کو لگا رہے پیچھے کے ابو بیٹھے, ایک دم سے ابو نے نا چند لوگوں کا نام لے کے کہا آپ نے نا ان لوگوں کے ساتھ شادی نہیں کرنی. میں نے اس کی طرف دیکھا, اتنی میری طرف دیکھا, بقاعدہ ان لوگوں کے نام لے کے کہے کہ آپ نے نا ان لوگوں سے شادی نہیں کرنی. مریدین میں سے بالکل نام. اور میں اس کی طرف یہ میری طرف کہ ہاں
हम ऐसी कोई बात ही नहीं है, हम इनको ऐसा हमने सोचा ही नहीं है, कोई इस तरह की बात ही नहीं। तो वो कहते हैं नहीं, हमने अपने मुरीदों में से ना किसी से भी रिश्ता नहीं कोई करना। हम चुप हो गए, बात आई गई। फिर अबू के विसाल के बाद वाकई हम लोगों के रिश्ते आए। तो फिर हमने मेरे पास भी ये फार्मूला था, मुझे भी अबू ने मना किया था। आपने कहा कि मेरे बच्चों की मेरे मुरीदों में शादी नहीं होगी, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू। तो ये फैसला करके गए, जो फैसला करते हैं वो हिल सकता है। हमने तो जिंदगी में ने कभी ऐसी कोई बात देखी कि जो उन्होंने कह दी और वो ना बोली। ऐसे हुआ भी ऐसे ही करते, बिल्कुल ऐसे हुआ भी ऐसे। याद है एक दफा आपने कहा कि ना अबू, आपको पता है कि हमारे नानकों की तरफ में ज्यादा नहीं जाने देते थे, सिर्फ मोना खला होती थी जो हमारे घर आ जाती थी, तो हमें मोना खला से बहुत प्यार था। तो मोना खला की जब बेटी हुई ना, तो हमारा बड़ा दिल किया कि हम जाके उनकी बेटी दिखे। अबू ने नहीं जाने दिया, अम्मी चली गई। तो ऐसे ना हम लोग बड़े उदास थे कि भाई हमारा दिल करा खाला के घर जाके ना हम बेटी दिखे। अम्मी चली गई, अबू ने बुलाया इधर, कहते हैं बच्चों की आधी जिंदगी ना उनके नानकों के साथ गुजारनी चाहिए। अब चुप हो गए हम लोग कि भाई अभी मोना खाला के घर तो हमें जाने नहीं दे रहे, तो कैसे? वही हुआ। देखें, अबू के विसाल के बाद नाना वो हमारे घर आके रहने लगे, मेरी शादी नानकों में हो गई, और नाना अबू की वजह से सबका आना। बल्कि नाना अबू का जो एक दफा क्या हुआ कि मुझे, मैं हॉल में बैठी हुई थी तो मुझे एकदम से आवाज आई थोड़ी ना अम्मी की ऊंची। तो मैं गई फौरन उठ के कि क्या हुआ। मैं कहने हूँ थानू किधरों ख्याल आया मेरे 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 बाप का ना। तो मैं क्या बात हुई। तो अम्मी को ना जैसे अम्मी को अच्छा नहीं लगा। अम्मी कहती, मैं अम्मी क्या हुआ। अम्मी कहती हैं कि अबू कह रहे हैं कि नाना अबू ने ले आइए, कि नाना अबू के साथ जिंदगी गुजरनी चाहिए। अम्मी कहती सारी जिंदगी तुम्हें मिली नहीं, सारी जिंदगी तुम लोगों को मिलने नहीं दिया, आज नाना अबू ने कहाँ से याद। और एग्जैक्टली वही हुआ कि अबू के विसाल के बाद नाना बिल्कुल अकेले हो गए थे, बिल्कुल। वो अकेले भी इसीलिए गए थे ना कि उन्होंने इधर आना था। नाना अबू स्ट्रेट वे इधर आ गए और फिर हमारे पास ही रहे, और हमारे ही पे पास रहे। पास की जरूर का एक सहारा अम्मी को जो मिला उस टाइम अबू के होने से, और हमें जो एक सहारा मिला घर में एक मर्द के होने से कि जो हमारी चलो बुजुर्ग थे ना, बुजुर्ग थे, बिल्कुल सही बात है, बहुत सही बात। और ये भी उस टाइम कहते थे कि नाना पास होना चाहिए। नाना पास कितनी बढ़िया, कितनी नान के तो भजन देखे हमने नाना की बात थे। हाँ की बात ठीक होती है, सही बात है। पहले आप पहले हमको पता ही था। और मुझसे अभी भी अम्मी कभी बात करती है ना वो हमारी फलाना कि हाँ मेरी फलानी फलानी। मैं सुनता रहता हूँ, मुझे पता ही कोई बहेगा भी नहीं। नान के हमें देखना उनकी बात है, मुझे पता ही नहीं था। तो वो सारी बातें पहले से ना आपने ऐसे जैसे बता के ट्रेन कर दिए कि भाई ऐसे होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई बात बताओ भाई। वो मैंने आपको हाँ सिर्फ पहली बात बताई थी गाड़ी वाली, कौन सी वाली? जो गाड़ी वाली बात थी, बताओ। वो जो जैसा भी गाड़ी थी ना सिविक की जो हाँ 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 तो वो भाई ग्राउंड में खड़ी हुई थी ना भाईजान। हाँ पता नहीं मेरे जहन में क्या आया मुझे नहीं पता, मैंने कपड़ा पकड़ा और मैंने ना गाड़ी साफ करनी शुरू कर दी। लगी चमकाने, इधर शीशा, उधर इधर वो इधर ये लगी होश हुई नहीं कि कहाँ। हालांकि उस वक्त हमारी गाड़ी नहीं थी, हमारी नहीं थी, कहाँ थी हमारी, हाँ। वो भी नहीं थी हमारी, नहीं थी। मैं अम्मी गली में हमारे पास मस्जिद थी उस हमारे पास मस्जिद थी, मैंने साफ कर दी। साफ करके जैसे ले मैं अंदर आई ना, अम्मी ने मेरी जंदी क्लास दी, किसी और दी गड्डी है तू क्यों साफ करती है, तेरा ख्याल नहीं आता कितने किलो की गड्डी साफ करती पई है फलान मक्का। ने मुझे खूब डांटा, मुझे भी वाकई यार किसी की गाड़ी मैंने पकड़ के साफ कर दी है। पता नहीं मुझे क्या हुआ था, अल्लाह जाने किसमें था, मैंने साफ कर दी। इतने में ना आप आए दफ्तर से ना, और आपने कहा ओए बता तुम्हें वो गाड़ी ना हमने खरीद ली, अब्बू ने गाड़ी ले ली है। मैं तो इतनी खुश हुई वाह जी वाह क्या बात होती है। वो गाड़ी आपको पसंद आ गई। हाँ, 1003 अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। वो हालांकि ना अब वो सीरीज खत्म हो चुकी है, गवर्नमेंट कहती है कि आप इसका नंबर चेंज करें, मैं नहीं करा रहा, मैं कैसे चलान कर लो मेरा इतनी ऐसी है। वो बहुत यादें बड़ी यादें गाड़ी के साथ आलमगीर भाई ने ले जाना, फिर
बहुत सारे शुरू में अंकल मेहरबान होते थे, उससे उनसे अब अंकल मेहरबान ने तो गाड़ी इतना सिखाई थी, वही मैं कह रही थी, सिखाई वो थी। ड्राइवर थे मेरे ख्याल है पोस्ट ऑफिस की, वो पीएनटी में रहते थे ना उधर क्वार्टर्स में, है ना। अच्छा तो उन्होंने अच्छा वो अब्बू को तो खैर वो सिखाते थे, तो मैं भी ना उनसे ट्रेनिंग लेता था अच्छा कि भाई गाड़ी कैसे चलानी। एक दिन ना उन्होंने मुझे बड़ी पसूड़ी में डाल दिया, एक रैंप, और वो बहुत ज्यादा रैंप नहीं था, मतलब बहुत स्टीप नहीं था, छोटा सा रैंप। तो उसके ऊपर ना गाड़ी मुझे कहते हैं इधर ऊपर लेके जाओ, मैं ऊपर लेके गया, तो कहते हैं इस पे गाड़ी खड़ी करो ब्रेक लगाए बगैर, यानी कि एक्सीलेटर और क्लच को ऐसे तुमने बैलेंस करके रखना है कि ये गाड़ी ना आगे जाए ना पीछे जाए। ये मेरी बिल्कुल एक नई बात थी, मतलब ब्रेक ही होती थी हमेशा। तो वो टेक्निक फिर उन्होंने मुझे सिखाई कि कितनी रेस कैसे वो उसका इक्विलिब्रियम कायम करना है कि स्टीप पे खड़ी रहे गाड़ी। अब तो खैर ऑटोमेटिक आ गई है सारी अम्मा मामला। को भी उन्हीं गलियों में लेके जाते ना, फिर वो उनकी वहाँ दुकान होती थी, फिर वहाँ से हम क्रीम रोल खा के आया। हम तो जाते ही इसलिए थे कि वो ड्राइविंग सीखेंगे। ख्वाजा साहब होते थे, उन्होंने बहुत ड्राइविंग किया है, बहुत ड्राइविंग की है। एक दिन मुझे याद है वो हम लोग आ रहे ना, ये जोहरटांग वाले जो मकान जब बन रहा था, तो अब्बू को ना वो आड़ू बड़े पसंद थे, तो आड़ू लिए कि भी लेके जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद ना आपने वो डैशबोर्ड खोला, तो छोटा सा चाकू निकाला, तो आपने ना आड़ू काट के ना खुद खा रहे थे, साथ ख्वाजा साहब को भी एक एक पाँव दे रहे, एक मिल दे रहे ऐसे। और जब वो घर करीब पहुंचे, समनाबाद से गुजरे, तो एक आड़ू सारे आपने सोचा है भी खा लिए की फिर जैसे फूफो के घर जाने का जो एवरी नाइट, वो हम समझते थे कि अबू जस्ट फूफो के घर जा रहे हैं, लेकिन आप देखें कि वो किस कदर शफकत थी फूफो पे भी, एक नज़र थी कि मेरी बहन है इस हालत में है, और उसका वो ख्याल कि रात के अंधेरे में मैं जा रहा हूँ, किसी का कुछ पता ना चले। और बिल्कुल दूर नंबे डबल रोटी सब कुछ लेके जाना डेली, और वहाँ पे जाके रोज लड़ाई करनी बकायदगी से, है ना। मैं अपने बच्चों को ये बात बताती हूँ कि बेटा सारे बड़े ना अंदर कमरे में लड़ते थे, और हम उन्हीं के बच्चे बाहर बैठ के लूडो खेलते। हाँ बिल्कुल, इजाजत ही हमें है ही नहीं थी कि जाके बीच में, कभी भी नहीं, आज भी नहीं, कि बड़ों के बीच में जाके ऐसे बोलना है, ऐसे बात करनी है। मैं अपने बच्चों की बात नहीं बताती। अच्छा ये बड़ी देखो कीमती बात है। मुझे ना एक दिन डॉक्टर खुशी नहीं है हमारे, हाँ जी, वो मुझे उनकी एक बात बड़ी पसंद आई। अच्छा वो बात करते हैं ना, कभी कभी तो मेरा भी जरा मीटर आउट होता है, तो मैंने एक दिन ना लड़ पड़ा, फोन से मैंने बंद कर दिया, तो मैंने सख्त बात कह दी। और फिर फोन आ गया, मैंने फिर फोन उठा लिया। कहते हैं लड़ाई करनी है ताल्लुक नहीं तोड़ना। ओए मैंने कहा जी बस फिर लड़ते रहे, कोई बात नहीं। तो वो आपा के साथ भी ये होता है कि अब तो लड़ाई होती है ताल्लुक तोड़ने के लिए। हाँ जी, लोगों की फैमिलियों में जो होती है ना, लड़ाई होगी ताल्लुक तोड़ दो जी, खत्म कर दो जी, फोन ब्लॉक कर दो, मिलना नहीं है जी, वो बदतमीज है। अब वो ताल्लुक नहीं तोड़ने देते थे किसी के साथ भी, हमेशा वो गुंजाइश रहती थी कि अगले दिन फिर चले जाना, झाड़ के आना है, अगले दिन फिर चले जाना, रोज जाना, हाँ रोज लड़ाई करनी है, यही मोहब्बत होती है। ये देखिए ना, बड़ी ट्रेनिंग है ये भी बहुत ज्यादा, कि बड़े बड़े लड़ रहे हैं और आप बाहर बैठे हैं, वही सारे उनके बच्चे हमारे मूंगफली खा रहे लड्डू खेल रहे हैं। किचन में वही हंसते रहना हम लोगों ने, जितना ऊंचा वो लड़ते थे उतना ऊंचा हम हंसते थे। Exactly. पता होता था कि ताल्लुक नहीं खत्म नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वो ताल्लुक देखते हैं कज़न्स वगैरह है, हाँ वैसे बॉन्डिंग है, हम कज़न में अभी भी हम याद करते हैं, बात करते हैं। तो हम लोग ना किसी शादी पे जा रहे थे उनके साथ ना, मुझे याद है, तो हमारे साथ वो ब्लैक कलर ड्रेस था, लंबा सा ऐसे मैंने पहना हुआ था, तो मुझे था कि ना बड़ा अच्छा लग रहा है ना, खुद ही मैंने अपने आप से ऐसे कहा कि यार तो ना बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसे ना बड़ा लगे, तो वो शॉल से ली है मुझे। अब वो मुझे ना बुला के कहा इधर आओ मेरी बात सुनो, कि जी उन्होंने भाई ऐसे मेरे माथे पर ना कुछ ऐसे ऐसे कुछ ऐसे किया, कहते बस ठीक है बच्चा, ठीक है। मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ थी, वो क्या था, लेकिन उन्होंने ये ऐसे मुझे किया बिल्कुल तैयार होने के बाद कि ये नजर ना लगे इसके, है ना, शायद पता नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसे वो उन्होंने किया मुझे कि वीडियो से बड़ा खास प्यार, बहुत ज़्यादा, बहुत भारी प्यार, बहुत ज़्यादा। मैंने वो वाकया पहले नाज़रीन को सुनाया हुआ है कि जब हम एक शादी पे गए थे और तुम्हारे
सूटों को काट दिया ऐसे ब्लेडों से ऐसे ऐसे सारा करके सूट हमारे खराब हो नए गए, फट सूट गए थे, नए हमारे शरारे वरारे सारे फट गए थे सब। और आप एक लफ्ज नहीं बोले। अच्छा एक लफ्ज़ नहीं बोले, बल्कि उसके बाद हम जब लाहौर आ गए ना, लाहौर आके हम पप्पो के घर गए ना, तो हम सारे बड़े एक्साइटेड थे पप्पो को स्टोरी सुनाएंगे। उस टाइम उस तरह से मोबाइल वगैरह तो नहीं होते थे, उन तक स्टोरी पहुंच चुकी नहीं थी, लेकिन उस तरह से तो हम सारे बड़े एक्साइटेड जो आप ये कहेंगे पप्पो को, ये कहेंगे, ये बताएं। उनमें मैं भी आगे आ गया, वो ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, तो ना नाम 2-4 ले लिए जो भी थे। तो जैसे ही हम गाड़ी में बैठे हुए थे, तुमने देखा था उसको करते कैसे? मैंने कहा खबरदार आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से नाम सुनता, जब देखा नहीं तो बोलो नहीं। बोलो नहीं। अबू से बेहतर कौन जान सकता था उस चीज को, लेकिन नाम कभी भी नहीं लिया। ठीक है। तो कहते हैं कि नहीं, देखो भी नहीं, हाँ बल्कि पता भी हो तो भी नाम का छोड़ो, छोड़ो। लेकिन अल्लाह के हवाले करो। खैर है वो बड़ा मुझसे खैर है, और हमने रिजल्ट भी देख लिए। अल्लाह माफी दे दो, बस माफी बात दे है। मैं ये दो। कहती हूँ हमने उनको माफ ही किया, अल्लाह ने उनकी मुश्किलें भी आसान बिल्कुल करे। सबके लिए आसानी होती जी है। बिल्कुल बिल्कुल। बस ये एक चीज जो बस मैं कहूँगा कि सरकार ने कभी हमारे अंदर नेगेटिविटी को ठहरने नहीं दिया। बिल्कुल। क्योंकि मुझे याद है एक दिन ना मैंने काली शर्ट ना वो पहनी हुई, पैंट मेरे पास थी ब्राउन, काली मैंने शर्ट पहनी थी और मैं बड़े गुस्से में था उससे, पता नहीं कुछ झाड़ पड़ी होगी अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, कोई ऐसी। बिल्कुल, हाँ जी। तो मैं ऑफिस में गया ना तो मुझे कहते हैं "ये जैसी शर्ट है ना वैसे तुम अंदर से हुए हुए इस वक्त, तुमने आज के बाद ना काले कपड़े नहीं पहने। बल्कि वो जो दोपहर में भी जब अब्बू सोते थे तो मैं और नादिया खुदाया बल्कि दोपहर को मैं और नादिया ना भागते रहना पूरी जगह पे भागते सही बात है। वो भागते थे वो और अब्बू को होता था कि मैंने ये सोना है, तो अब्बू ने क्या करना हम दोनों को उठा के साथ ले जाना, आज सो जाओ सो मेरे जाओ साथ। मेरे साथ। वही तो हम लेटते थे, नींद तो नहीं आती थी, तो जैसे ही अब्बू ने थोड़ा डीप स्लीप में जाना, नादिया ने सर उठा, जाग रही हो, तो पैर सम टाइम तो मैं रो पड़ती थी, तो जैसे बोलो ना मैंने ऐसे आंखें बंद कर ली, अब बोले यहाँ से ऐसे मेरे आँख साफ हमारा खेलने का टाइम जाया होगा, फिर भाईजान ने गुड्डियां उड़ानी होती हैं। हाँ, वही टाइम था। तो इतने सारे हम पकड़ते थे। उफ, मेरी याद है मेरे 2 वाकयात जो है ना जिसमें सही मानों में मेरा जो है ना वो तबाही मेरे अंदर की फेरी थी आपने। रोए थे धाड़े मार दोनों दफा बड़े धाड़े मार मार के मेरे पास थी पतंगे, हाँ बड़ी प्यारी। बल्कि वो सिर्फ पतंगे नहीं थी, वो थी खिलाड़ियों की पतंगे, ये जो पेचे लड़ाने वाले जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना उनकी पतंगे, बहुत अच्छा खासा ढेर लगा हुआ था मेरे बहुत पास। अच्छी थी, हाँ जबरदस्त। तो वो आपने दोपहर को पता नहीं क्या हुआ, आपको गुस्सा चढ़ा, आपने पकड़ के ऐसे सारी पतंगियों को ना ऐसे कचूमर बना के तो टीचर नाले में फेंक दी। मेरी इतनी मेहनत उनके ऊपर हुई हुई, मुझे कोई दुख हुआ, मैं रोया उसके ऊपर। फिर एक और होता था, अभी तो बच्चों को पता ही नहीं है, बट्टे के जैसे हम लोग हैं ना, तो निशाने वाले भी और ऐसे हाथ वाला भी बड़े स्टाइल से हम लोग खेलते, और मैं बड़ा माशाल्लाह जो भी खेला है बड़ा प्रो लेवल पे खेला है मैंने हमेशा। तो मैंने ना वो नीडो के डब्बे नहीं होते थे, इतना बड़ा डब्बा था, वो ऐसे भरा, और उसमें मैंने इतने प्यारे बंटे थे, खूबसूरत बंटे जो मैं जो मुझे बड़े पसंद थे ना वो मैंने उसमें स्टोर यार आप निकालते तो फिर देखते थे, हर बंटे को आप देखते थे, अरे ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, बताते थे आप। बड़े नाम होते थे, बड़े नाम होते बड़े थे प्यारे, उसको देखते थे। खूबसूरत बंटे, बड़े प्यारे थे वो। बड़े प्यारे। और वो एक दिन पूरा डब्बा उठा के हमने नाले में फेंक दिया। ये नहीं करना। गया ये गया, बस गया तो फिर गया, फिर दोबारा नहीं हमने कभी हाँ, इकट्ठे किया दवा सही पर, बात। छोड़ दिया सही बात। बस उस रोड पे भेजना नहीं था ना, बिल्कुल। तो वो नहीं भेजा। हाँ जी, जब मोटरसाइकिल लेके जाता था सारी सफाइयां तो मुझसे हम करते थे बैठकर, और टायरों के टायरों में साफ निशान करते थे, मिटाने, ये मोटरसाइकिल करना साफ होगा, और फिर करते भी थे, अब्बू को पता होता था हाँ जी। ये मोटरसाइकिल गई थी। और जब हमारे पेपर होते थे तो अब्बू क्या होता था, टीवी का मुंह दीवार की तरफ, हाँ बिल्कुल। दीवार की तरफ के अब टीवी नहीं देखना, हाँ। पहले ही टीवी कम होता था, पेपर हो गया तो आप क्या करते थे, टीवी भगत पीछे करके
लगा लेता था और ये बंदे वो करके ऐसे, वो पुराने टीवी थे ट्यूब वाले, अब अब्बू के आने का टाइम है आपने बंद कर दिया, अब्बू के आते साथ टीवी के टीवी ऑन था, तो अब्बू कहते टीवी लगाया, नहीं अब्बू टीवी कुर्सी होती थी जो दफ्तर में, हम उस पर तो कोई बैठता नहीं था, नहीं मना था, सख्ती से मना था, सख्ती से मना था, चेयर पे कोई नहीं बैठेगा, कोई नहीं बैठेगा, अबू के बेड पे कोई नहीं सोएगा, अबू की टेबल को कोई अरेंज नहीं करेगा, इवन डस्टिंग तक अलाउड नहीं किया। आप कहते थे इस बेतरतीबी में मेरी तरतीब है, तो भाईजान अबू जब निकलते थे हम कुर्सी पे जाके बैठ जाते थे, हमें बड़ी मेरी कुर्सी पे कौन बैठा था, आज कौन बैठा था, लोग पता लगे कोई कुर्सी पे बैठा था, लेकिन पता नहीं बहरहाल अच्छी रही है, बढ़िया है, कोई बाद में और अबू ने तो शेर भी लिख दिया कि उड़ती नहीं आसमाना होते अपने आप पतंग, जीते हाथ डोरे तेरी ओलियां खैरा मांगे, तो बस खैर ही मांगनी चाहिए, ये हमारी गुड्डी की डोर आपके हाथ में। ये मेरे छोटे छोटे भाई थे जो मेरे सारे खुफिया कामों में मेरी मदद किया करते थे, इनको मैंने सिखा दिया। वो आजकल तो वो खैर पतंगबाजी होती नहीं है, लेकिन जब हुआ करते थे तो चरखी आ गई थी आखिरी टाइम तक, लेकिन हमारे दौर में पिन्ने होते थे जिसकी पीढ़ियाँ होती थी, तो मैंने इनको सिखाई हुई थी दोनों को कि ये पीढ़ी है, ये इसलिए ख़त्म होना है और इसको चेंज कैसे करना है। तो इन्होंने वो पिन्ना पीछे लेके जाना और जब पीढ़ी खत्म होने वाली तो आगे भाग के आगे, बड़ा टेक्निकल काम था, लेकिन ये माशाल्लाह बड़े एक्सपर्ट बहुत ट्रेंड हो पुराने सारी गेमें, क्रिकेट, हॉकी, बंटे, हर चीज के लिए। आप भी हमारे साथ खेलते थे, गुल्ली डंडा खेला हमने, बांदर खेला हमने, सब कुछ खेला है। कुर्सियों का घर बनाया करते थे, आप बड़े बनाते थे कुर्सियों पे, डाइनिंग टेबल पे भी चादरें मैंने भी पिछले तरफ अपनी क्लास में ना, मैं बच्चों के साथ वो पढ़ाई थी, मैंने तब मैंने रिकॉल किया, मैंने उनसे कहा कि तुमने कभी टेंट बनाया चादरों को, तो बच्चे कहते हैं वो कैसे होता है, मैंने फिर बताया कि हम लोग टेंट बनाते थे और फिर लिटरली सो जाते थे और भाईजान इतने मजे का हमारे लिए बनाते हैं, तकिए लेके आ रहे हैं, चादरें ला रहे हैं, ये इसका कमरा कुर्सियों के नीचे, और अपने वहाँ सो जाते हैं। और भाईजान कितना अच्छा लगता था, कितना प्यारा टाइम भाईजान, कितना खूबसूरत बात, बहुत प्यारी याद है। बातें तो नाज़रीन ऐसी हैं कि यकीन करें कई घंटे और भी लग जाएंगे, तो अभी आज की इसको पार्ट 1 ही समझें, इंशाल्लाह ताला कभी मौका मिला तो दोबारा इकट्ठे बैठेंगे और दोबारा हम कुछ इस तरह से रैंडमली कुछ चीज़ें, कुछ बातें याद करेंगे। तो जैसे सरकार फरमाते हैं कि याद का नाम दुरूद है, अदब का नाम फैज़ है, तो याद भी है और अदब भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारा असासा है, ये हमारी विरासत है। आपकी जैसे गुफ्तगू विरासत है, वैसे ही आपकी यादें भी हमारे लिए विरासत है। ये वाली बातें कहीं और नहीं है, किसी बुक में नहीं है कोई, ये हम लोगों की ज़िंदगी के साथ गुजरे हुए जो लम्हात है, ये हम लोग चेरिश करते हैं बैठ के। अम्मा जी के साथ भी बैठ के हम लोग ये बातें करते हैं, कुछ लड़ाइयों वाली बातें भी करते हैं, सब बातें हमारी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि बुजुर्ग जो है ना वो मुस्तकबिल की बातें नहीं करते, बुजुर्ग हमेशा माजी में रहते हैं, माजी की यादों में रहते हैं। शायद अब हम भी बुजुर्गी में चलना शुरू हो गए, हमारे को बहुत ज़्यादा मुस्तकबिल के प्रोग्राम नहीं है, बच्चों के होंगे, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि हम उनकी पुरानी यादों में रहें, हमारे अपने उन घरों में रहें। ये बातें सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये बातें जब हम बताते हैं तो लोग उससे रिलेट करते हैं अपनी लाइफ को। और बहुत सारे लोग ये सवाल भी होते हैं कि भाई साहब अपने घर में कैसे थे। तो आज छोटे से हमने आपको कुछ वाक़यात बताए हैं कि कितनी शफ़क़त के साथ, कितनी मोहब्बत के साथ, कितनी तवज्जो के साथ, इतनी मसरूफ़ियत कि सुबह फजर शुरू होनी है, अम्मा जी ने चाय बना के देनी है, नाश्ता होना है, बच्चे ने स्कूल जाना है, और उसके बाद से लोगों का आना जाना शुरू हो जाना है। रात कब ख़त्म होनी है कुछ पता नहीं। रात को तो अक्सर ही ना हमने आपको इज़्तिराब में देखा है, बहुत कम सोते देखा है, कुछ घंटे, शायद 1-2 घंटे, और जो आपका सोने का वक्त है ना वो था दोपहर खाने के बाद का 1 घंटा 1.5 घंटा या मैक्सिमम 2 घंटे।
اس سے زیادہ کہ آپ نیند نہیں لیتے. وہ ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ سب گھر میں کرفیو لگ جاتا تھا کہ کوئی بندہ بھی آئے فون نہ بجے اور سب لوگ جو ہے نا اس وقت کا احساس کریں کہ یہ ٹائم ہے جس میں آپ آرام فرماتے ہیں. تو رات کی باتیں تو بڑی ہو چکی, کالم لکھے گئے, جتنی بکس ہیں رات میں ہوئی, پچھلے پہر میں ہوئی, آپ کے داتا صاحب کی حاضریاں ہوئیں, کیا کیا واقعات ہوئے. تو رات کی تو بہت ایک علیحدہ سے ایک بڑا مضمون ہے, پھر کبھی اس پہ بات کریں گے. تو لیکن آپ کے آرام کا جو وقت تھا نا وہ یہ تھا, آپ کی چھوٹی سی کھانے کی چیزیں جو پسند تھی آپ کو وہ ہم نے آج بیان کی ہیں, کوئی تھوڑی سی آپ کی محبت نامے بیان کی ہیں. بس ہماری خوشی ہے کہ ہم اس میں راضی رہتے ہیں, ہمیں بڑا پسند ہے ان باتوں کے اندر رہنا. ہمارا دل کرتا ہے اسی میں رہیں. یقین کریں دنیا کے حالات و واقعات سب اپنی اپنی جگہ پہ ماشاء اللہ اپنے گھر والے ہیں, سارے کے سارے زندگی گزارتے ہیں, لیکن یہ مومنٹس ہمارے لیے بڑے قیمتی ہوتے ہیں. آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے دوبارہ بھی آپ سے ایسی ملاقات رکھیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. سرکار کا ایک شعر پیش کرتا ہوں کہ واصف ہے میرا نام مگر راز ہوں گہرا, ذرے نے جگر چیر کے رکھا میرے آگے. باتیں اور بھی بڑی کھلیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ سب کو سلامت.